our today topic is about balance sheets. How balance sheets are made, how genuine balance sheets are, and what to make out of it. So, fortunately, I went through the balance sheet of Aarti Industries. It came out with the results on Friday evening. It had a turnover of 2019 crores or thereabouts, say 2000. Surprisingly, inventories are 1350 crores. So net the turnover is only 650 crores. Then I dig further. The receivables are 1400 and something crores. Now everything is on credit, which looks very fishy. Then capital work in progress. Last year it was some uh, 1200 crores, and this year it's 1490 crores. So basically, this is an accounting entry. No real sale, no real purchase, nothing. So I feel such companies eventually become DHFL or Yes Bank or JP Associates or Unitech. So you have to be very vigilant of such companies. On design, I don't look at balance sheets because unnecessarily it bothers me a lot. But if I see balance sheet of Asian Paint or Pidilite, it's not that uh, problematic, but say 30% problem is there. Just by not looking at it only, I say there is a 30% problem. The best of the company, Hindustan Lever, I take the results with a pinch of salt because everything is doctored. Doctored to suit you, doctored to suit them, and doctored to suit the stock price. So it is an accepted norm of doctoring balance sheets. Now, in case of Asian Paint, I have not looked at it, but once I had looked at it. So to pad up the sales, they increase the sales of putty. You know what putty is? In paint and putty, you apply it on the wall and then you apply the paint. So the sale of putty was much higher than normal. So in times of difficulties, they do prop up their balance sheet, and which is okay, I suppose, in the general interest of the market. But such cases like Aarti Industries, I think you are going to have a problem. This is the Aarti Industries. I have not looked at Deepak Nitrite, but it's the same case. वो कुछ बेचता है, some what they sell, phenol and all that. बस फिनॉल में इतना प्रॉफिट कहाँ से आ जाएगा? 500 लोग बनाता है फिनॉल. Okay, anyway. So, and unfortunately, I don't know how to see, but can anybody tell me what was the rate of Aarti Industries 3 years ago? Abhishek, you can help me with this. 150 रुपए. Huh? 150. And come bonus. 100 sir, This is the 100 ex 100 shift bonus. double digit में था, double digit. Hmm. So this is the kind of what should you say? This is
ये चोरी है. So I suppose anybody should be very vigilant. I'm not saying वो आर्थ इंडस्ट्री चोर है क्या है, बट इन माई माइंड आई नो वो चोर है. वो अगर 3 साल पहले 75 का भाव था, तो अभी 750 क्यों होना चाहिए? उस उतना तो क्या गया है? Similarly, so many other stocks are like that. Over to you, Abhijit. I'll speak later on. हाँ सर, ये जो मंथली कैंडल अगर आप लगा के देखोगे ना कि ये मतलब 2014-15 से हुआ है ब्रेकआउट, उसके बाद देयर इज नो स्टॉपिंग इट. इन दैट पीरियड इट हैज गॉन अप फ्रॉम अबाउट 30 bucks or 25 bucks, from 25 bucks to 700 as of now, but 1,000 bucks also in between. तो ये मतलब it has literally become a 50 bagger over a period of what, 5 years, 6 years probably, 2000 now. And if you look, so there is one indicator which you can use on your invest trading view कि वहाँ पे तुमको EPS दिखता है, अर्न प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का एक ये दिखता है फाइनेंशियल इंडिकेटर. You just look at that कि बहुत, I'll just share that with you on this one now. बहुत ही ज़्यादा earnings जो है they've just plateaued out, and then the price to earnings is still going up, going up. That is one part about the price. बाकी देखा जाए तो even if you have, let us say, after such a big trend which is like lasting for 20 times, so even a correction of about 65%, 70% is not a big deal, क्योंकि ये पूरा खाली पे गया है, एकदम मैनिपुलेट कर करके गया है ऊपर. And it's just a few guys sitting in Bombay who are jacking it up like crazy. तो वो होने वाला है. Hardik ji, I'll give you a chance in a bit. हाँ, तो No, this is just one stock we are talking about. ऐसे वाले जिसके बैलेंस शीट इतना खराब है. Although I am not such an expert on balance sheets, but just मेरे को ये इन्वेंट्री जो ट्रेडेबल रिसीवेबल्स और डेटर्स ये सब उधर से स्टोर्स पर थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है. Sharad sir no, will explain much more about it. no. I'm restricting myself to FNO. I'm not uh, going into B group because there though it's horrible and beyond my reach. Because if I understand also, I can't short it. This, according to me, PI industry, then Polycab are all such shares are taken up unnecessarily, unwantedly. Deepak Nitrite, so many of them, and some of the genuine shares also, they are so overpriced. I cannot believe it. This Tata Consumer, the rate is 700 or 25. Market number of shares is 100 crores, 75,000 market cap, and a profitability of 230 crores per quarter. It's damn expensive, damn expensive. Why do we buy such shares? For what? That's it. Dr. Amit, you have to say anything. Sir, can you hear, sir? Hello. Hello. हेलो. हाँ डॉक्टर जी. आवाज आ रही है बोलिए. सर? हेलो. हाँ हाँ. बोलिए ना. बहुत है डॉक्टर नहीं साहब इतना. बोलिए. हेलो. Yes, we can hear you. So I think some connection issue है. Yeah. So तो one हार्दिक thing, साहब,
हाँ, वन थिंग आई वुड लाइक, हाँ अभी आ रहा है, ठीक है, आ रहा आ है। रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ओके, फंडामेंटल में तो बैलेंस के बाहर है सर। और कुछ भी एनएसी ने तो रिलीज की नहीं हर फाइल, तो वो भी नहीं, आवाज कट रहा है। वो पूरी देता भी नहीं है। नहीं, आप सो डिस्कनेक्ट वेटिंग टू सम करके, सिग्नल फ्रॉम द लिक्विडिटी साइड। नहीं नहीं, आप दोबारा ओके ओके कनेक्ट सर, होइए, आई थिंक दोबारा देयर इज द, ओके ओके सर। आप दोबारा कनेक्ट होइए डॉक्टर अमित। देवाशीष, बोलो। नहीं बोलना है, बोलना है। अनम्यूट। ओके, हार्दिक भाई। हाँ, शरद सर, हाई रिगार्ड्स टू यू सर। आपने जो बोला वो एकदम सही है। मैं हम्म, आज तक जितना भी क्या बोलते हैं केमिकल स्टॉक्स का बात आपने जो किया ना, हम्म, मैं केमिकल सेक्टर से ही हूँ लास्ट हम्म, 23 ईयर्स से। हम्म, ये दीपक नाइट्रेट हमारे बाद आया है, और हम्म, वो जो प्रोडक्ट बनाता है ना, वही हम्म, प्रोडक्ट के हम लोग एजेंट है लास्ट 22 साल से। हम्म, आपने हर्टिलिया केमिकल का नाम सुना होगा। हाँ, हाँ, उसके बाद में हर्डिलिया को स्कैनेक्टेड इंडिया ने ले लिया। हम्म, अभी स्कैनेक्टेड इंडिया ने प्रॉपर्टी देख के हर्डिला को लिया था। वो हर्डिला को डिलीट किया जब भी, तभी 75 रुपीज का बायबैक ऑफर निकाला था वो लोग ने। अभी हाँ, वही सब कनेक्टेड। हाँ, स्कैनेक्टेड इंडिया। हम्म, अभी स्कैनेक्टेड इंडिया को भी बेच दिया लास्ट लास्ट मंथ आयन केमिकल में। हम्म, और वही सब डेरिवेटिव केमिकल दीपक नाइट्राइट बनाता है। ये अभी दीपक नाइट्राइट का गेम करने के लिए ये लोग ने आयन केमिकल ले लिया है। हम्म, अभी स्टैंडर्ड का सब प्रोडक्ट है वो सब बनेगा नहीं, बराबर है। तो दीपक कौन सा हम्म, बेसिस के ऊपर उसका 3,000 रुपया भाव लेके गया ना, वो सर मेरे दिमाग में नहीं बैठता है। हम्म, उसका आईपीए कोरोना के टाइम में आईपीए में गेम कर दिया, 200 रुपए का आईपीए का भाव 800 रुपया कर दिया। फिर उसका हम्म, डायरेक्टर को निकाल दिया कि वो गेम कर रहा है मार्केट हम्म, में। प्राइस प्राइस अपना अपना शेयर बाजार का भाषा में बोलता है फ्रंट रनिंग। उसने वही किया, 200 रुपए का आईपीए का भाव कर दिया 800 रुपया, उसको निकल हम्म, दिया कंपनी ने, वीबी देसाई को। हम्म, अभी ये सब केमिकल सेक्टर में आप जो आरती का बोल रहे हैं, अभी आरती का रशीश भाई गोगरी, उसके साथ में मैं 1 to 1 आपसे बात करता हूँ ना, वैसा 20 साल से बात करता हूँ। ओसीपीएन है, एनसीपीएन है, ये सब आइटम वो बनाता है। अभी ये हम्म, सब केमिकल सेक्टर में क्या है, सब आप देखिए। अभी उसका जो आइटम है ना वो बेंजीन बेस है। बेंजीन का प्राइस बढ़ते जा रहा है, उसके वजह से जीएनएफसी का प्राइस बढ़ रहा है। दो हम्म, 190 रुपये वाला जीएनएफसी 900 रुपये कर दिया। अभी हम्म, लास्ट चैट में आपने बोला था कि कोई भी स्टॉक को वो लोग एफ में उसके लिए घुसाते हैं कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 900 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पब्लिक को भी भाव कर दिया 600 रुपया। हम्म, फंडामेंटली उसका टीडीआई, एनिलिन, यूरिया, ये सब का प्राइस 4 गुना कर दिया है सर। चाइना प्लस वन बोल के। इधर वो साला किसी को रॉ मटेरियल का पोषण ही नहीं है। आप पोशाक केमिकल देख लीजिए, आरती देख लीजिए, अमल केमिकल देख लीजिए, पीआई इंडस्ट्री देख लीजिए। पीआई इंडस्ट्री का सर भाव क्या था, 400 रुपया, उसको लेके गए 3,000 रुपया। फर्टिलाइजर, आरसीएफ का भाव, सबसे पुराना कंपनी आरसीएफ है, हम्म, सबसे पुराना। यूरिया नंबर 1 आता है उसका, उसका हम्म, भाव 100 रुपए के अंदर है, जब भी उसका भाव होना चाहिए 400 रुपया। दीपक फर्टिलाइजर, उसका भाव होना चाहिए कम से कम 1,000 रुपया। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। ये सब को बैठा के आपने जो सर जो बोला है ना, आपने एकदम सही पकड़ा है। ये केमिकल सेक्टर में ये लोग सब गेम ही कर रहे हैं बैठ के, सब फोर्स बैलेंस शीट। मैं हमेशा सब चैट पे बात करता था, कोई कोई चैट में से तो मेरे को निकाल दिया कि आपको कुछ मालूम नहीं है, दीपक नाइट्राइट इतना बड़ा कंपनी है, इनोल का डेरिवेटिव बनाएगा, उसका ये बनाएगा, ढिमकाना फलाना। अरे सर, उसका दीपक नाइट्राइट का कंपनी चालू करने के बाद 2 साल एसीटोन उसने बनाया, पूरा माल भर गया था उसके पास बेचने के लिए जगह नहीं था। 100 रुपए का एसीटोन 15 रुपए किलो हो गया था, 15 रुपए किलो। फिर उसका फट गया, ये तो कोरोना आया, तो उसने वो सब माल कनाडा में एक्सपोर्ट किया, और उधर से फिर वापस एसीटोन का भाव 15 रुपए से बढ़ के 60 रुपया हो गया। नहीं तो उसका बैलेंस शीट क्या था उसका, आप कोई भी देख लो, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल, सर आपको मालूम रहेगा कंपनी। आप इतने पुराने वेटरन है मार्केट में, वो सब प्रोडक्ट बनाती है, यही प्रोडक्ट दीपक का प्रोडक्ट है, आरती का प्रोडक्ट है, वही बनाती है। क्यों कंपनी नहीं चल रही है सर? 8 रुपया शेयर का प्राइस है, वो हम्म, कंपनी नहीं कमाती है। उसका इतना बड़ा प्लांट है, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है, उसका क्वालिटी आज इंडिया में कोई मैच नहीं कर सकता है।
और ये सब केमिकल कंपनी साला कल पैदा हुआ कंपनी सब 2-2, 3-3, 4-4 हजार रिटेल की गांड में घुसा देंगे सब ये। सॉरी टू से दिस वर्ड सर, ये सॉरी सब सॉरी। सब रिटेल में घुसा दिया है 2-2, 3-3 हजार में। मेरे सब दोस्त लोग 2200, 2300, 2400 में दीपक में घुस गए। आज प्राइस कर दिया 1800 रुपया। ये अभी आप सब बोल रहे हैं कि अगर मार्केट 14,000 हो गया, 13,000 हो गया, तो दीपक हो जाएगा ट्रिपल डिजिट में सर। 250 रुपया था कोरोना में प्राइस दीपक का, 250 का 3,000। क्या फंडामेंटल? चाइना प्लस वन, देर इज नथिंग चाइना प्लस वन। सर एक ही छोटा सिंपल बोलता हूँ, अगर गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को आपको प्रोसेस देती है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लैंड चाहिए, लैंड के बाद मशीनरी चाहिए, मशीनरी के बाद आदमी का नो हाउ चाहिए, नो हाउ के बाद में आपको लोन मिलना चाहिए, उतना आदमी लोग काम करना चाहिए। और केमिकल सेक्टर में कोई भी फैक्ट्री सेटअप करने को कम से कम 6 से 7 चाहिए, 7 साल चाहिए, उसके बाद में कंपनी प्रॉफिटेबल होता है। ये मैं ग्राउंड लेवल बोल रहा हूँ सर, मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है केमिकल में, मैं डीलर था केमिकल का, अभी भी हूँ डीलर। अभी हम दीपक के पास डीलरशिप लेने जाते हैं, एसआई ग्रुप के हम लोग एजेंट है, एसआई ग्रुप का एजेंसी चले गया है, मतलब बंद हो गया है। अभी दीपक के पास जाता है, बोलता है 600 टन कमिट करो हमको। अभी उसका उठना पड़ता है, बोलता है 600 टन सर, 600 टन। आज का फिनॉल का भाव है 140 रुपए किलो, गया साल फिनॉल का भाव था 70 रुपीज के जी। 600 टन का उसको कमिटमेंट चाहिए, उसके बिना बोलता है हम एजेंसी नहीं देगा। तो क्या बेसिस पे वो सर धंधा करेगा आपका? एकदम सर मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं थोड़ा लेट आपसे ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन मैं वर्ड टू वर्ड आपसे मार्क करता हूँ, शरद सर एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं, आप एकदम सही पकड़े सर, परफेक्ट। ये मार्केट में सब दीपक नाइट्राइट, दीपक नाइट क्या है सर? दीपक नाइट्राइट में क्या है? 4 प्रोडक्ट है उसके पास, और क्या डेरिवेटिव पे चलेगा? एक फिनॉल का मंदी आएगा ना, ये गवर्नमेंट ने फिनॉल, एसीटोन, ये सब प्रोडक्ट के ऊपर कुमो कोरिया से माल आता है, उसके ऊपर एंटी डंपिंग डाल दिया है। अभी एक न्यूज आया है कि कुमो कोरिया से एंटी डंपिंग हटा दिया है सर, 2400 वाला 1800 कर दिया है। अभी और 2 कंट्री से एंटी डंपिंग हटा देगा ना तो 180 रुपए हो जाएगा दीपक का भाव। मेरे को तो दिमाग में बैठता ही नहीं है क्या हिसाब से ये लोग कमाते हैं और क्या हिसाब से ये लोग करेंगे। आरती इंडस्ट्रीज सर एनिलीन बना, एनिलीन इंपोर्ट करता है 3,000 टन, वो मार्केट में बिकवाल था लास्ट 3 महीने पहले, वो खुद बेच रहे। उसकी मैडम को हमको फोन आता था कि हार्दिक भाई हमको माल बेच के दो, उतना माल उसमें घुस गया, 5,000 6,000 टन माल। तो क्या क्या हिसाब से? और जीएनएफसी जो एनिलीन बनाता है खुद, इंडिया में अभी नंबर 1 है जीएनएफसी, वो खुद बनाता है, उसके पास खुद के पास सेल, उसका खुद का माल नहीं बिक रहा है। तो क्या बेसिस पे ये लोग सब प्राइस फुगावा किया है सर? ये रिटेल वाले को सबको समझाना चाहिए, लॉन्ग टर्म बीम टर्म कुछ नहीं होता है। आप कमाओ 3 महीना 6 महीना, आपका पैसा डबल हुआ, निकल जाओ, दूसरा स्क्रिप्ट पकड़ो। हर तेजी में हर नया आइटम आता ही है। 2 4 5 साल के बाद दीपक किसको मालूम भी नहीं रहेगा, केमिकल सेक्टर घुसा दिया। लास्ट 10 साल में केमिकल सेक्टर में तेजी आया ही नहीं है सर, पागल के जैसा भाव कर दिया है सब केमिकल का। हार्दिक बोलो भाई, सर। हार्दिक भाई, हार्दिक हाँ भाई, सर, आप जरा श्वास ले हाँ सर, हाँ सर, और मैं आपको सवाल पूछता हूँ, उसका हाँ आप सर, जवाब दो। यस सर, भारतीय इंडस्ट्री हाँ बोलता है एक क्वार्टर में 2,000 करोड़ का टर्नओवर है, पॉसिबल बराबर है? है सर, हाँ पॉसिबल है सर। उसका क्या है सर कि नहीं, एक, दो, हाँ हाँ बोलिए। सर, उसका क्या है सर, उसका जो प्रोडक्ट है ना वो सब डाइज और डाइज इंटरमीडिएट्स में जाता है। अभी हम्म, कोई कोई चीज में उसने क्या किया है कि समझो एग्जांपल दे रहा हूँ सर, कि हम्म, समझिए शरद सर है, अभिषेक भाई है, मैं हूँ, फिर ये डॉक्टर साहब है, मतलब ये ऊपर जो स्क्रीन में दिख रहा है सबका नाम दे रहा हूँ। अभी शरद सर 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो अभिषेक भाई को बोलेंगे क्या क्या है तुम्हारा, कितना मैन्युफैक्चरिंग है, आप मेरे में ज्वाइन हो जाओ। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्पाइक केमिकल करके कंपनी का, वो एमसीए बनाता था, बराबर है, वो एमसीए बनाता था, दीपक भी ये भी बनाता था आरती वाला, लेकिन उसने उसके सामने खड़ा होने का कोशिश किया, तो इसने क्या किया, 100 रुपए का प्राइस का भाव कर दिया 30 रुपया सीधा। नुकसान हो रहा था, कॉस्ट था 70 रुपीज, लेकिन इसने 30 रुपया की दिया। वो स्पेक केमिकल वाला 6 महीने में दिवालिया हो गया, उसको हम्म, प्लांट बीन सब बेचने को आ गया। तो उसने क्या किया, वैसा वो कंपनी को खुद के अंदर ले लिया और उसको बोला कि तू मेरे में आ जा। मेरा खुद का उधर 50 लाख के ऊपर आउटस्टैंडिंग था स्पेक केमिकल में। मेरा रातों रात का नींद हराम हो गया कि भाई बैंक को पैसा चुकाएगा कैसे, करेगा कैसे। राजेश भाई को जाके मिला, बोलता है आप चिंता मत करो, वो कंपनी हमने टेक ओवर कर लिया है, आपका पैसा 3 साल में हम लोग चुका देंगे। अभी 3 साल का ब्याज तो मैंने भुगता। उसने 3 साल में वो प्लांट में 30 रुपए का भाव का प्रोडक्ट 140 रुपए कर दिया। हम्म, आप समझ रहे, ऐसा ही करके उसने सब छोटा छोटा कंपनी जो भी मोनोपोली आइटम था वो सब ले लिया और खुद का मोनोपोली कर दिया। अभी उसका सेल्स है जो भी है, जो भी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है, वो सब एक्सपोर्ट कंट्रीज में
उसका रियलाइजेशन डबल है कोई भी प्रोडक्ट में, हम्म, तो उसका सेल्स आज का तारीख में बेस्ट ही है सर। अभी ऑल केमी लैब ले लो, उसका जो भी कंपनी है, ऑल केमी ले लो, ये इधर अपना न्यू बॉम्बे में एक कंपनी है, वो वेलियंट है, वो सब उसका ग्रुप के अंदर आ जाता है नहीं आरती। वो सब अलग है। हाँ, सब सब नहीं अलग है। मैं क्या पूछता हूँ हाँ सर कि बोलिए। 2000 करोड़ का सेल है हाँ सर। और 1400 करोड़ का इन्वेंट्री है, हाँ, तो वो चौदह इन्वेंट्री सौ तो का वो 1400 करोड़ 2000 में आ गया, तो नेट बराबर है सर, सेल तो हुआ 600 करोड़। 600 करोड़ का। सर अभी अभी क्या हुआ है, कोई भी केमिकल वाटले का देखेंगे ना, तो इन्वेंट्री वो लोग ये क्वार्टर में या लास्ट क्वार्टर में ज्यादा ही बढ़ाया रहेगा। उसका हम्म, रीजन क्या है कि चाइना से अभी जो लॉकडाउन है, और हम्म, चाइना से बहुत सारा रॉ मटेरियल जो आता था उसके हम्म, ऊपर एंटी डंपिंग लग गया है। दूसरा क्या है, चाइना वाला इंडिया के अगेंस्ट में आ गया है कि अभी हम लोग सब प्रोडक्ट आपको इंडिया में भेजेंगे नहीं। तो अभी हम्म, बहुत सारा केमिकल फैक्ट्री वाला, ये आरती वाला है, मेघमणि है, फिर अपना हम्म, बड़ा बड़ा कंपनीज है जो हम्म, चाइना फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट था उनका रॉ मटेरियल के लिए। अभी क्या हो गया है, एग्जांपल देता हूँ कि अभी समझो कि उसको कोई प्रोडक्ट बनाना है बेंजीन बेस्ड, तो अभी बेंजीन तो समझो बीपीसीएल से ले लिया या रिलायंस से ले लिया। उसके बाद में अगर उसको बनाना है एनिलीन, तो एनिलीन उसने जीएनएफसी से लिया, लेकिन खुद इंपोर्ट भी करता है। अभी उसने क्या किया कि माल बढ़ने वाला है, मैं इंपोर्ट करके रख देता हूँ, लेकिन एनिलीन बना के बाद में ओसीपी ने बना अपना डाइस बनाना है उसको, तो एनिलीन के साथ में दूसरा जो केमिकल आता है वो चाइना से आया ही नहीं है। तो क्या करेगा वो प्लांट बंद कर दिया उसने, 4 महीना 5 महीना चला गया। तो वो सब इन्वेंट्री में ये क्वार्टर में दिखा दिया। अभी वही प्रोडक्शन जब भी चालू होगा, जब भी माल आने का चालू होगा, तो उसको पोसाएगा नहीं, क्योंकि चाइना वाला ने डबल प्राइस कर दिया है सब चीज में, सब प्रोडक्ट का प्राइस डबल कर दिया है। अभी पोषण है नहीं, वो पोसाएगा नहीं। अभी जो एनिलीन सर हम लोग 70 रुपीज केजी में लेते थे, आज उसका प्राइस 175 रुपीज है। 175, ऊपर में उसका प्राइस किया था 220 रुपया। सट्टा ही किया है सर, इधर लोकल में सट्टा ही चलता है सब। ये जीएनएफसी है, जीएनएफसी का ही माल आता है, पहले हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल और जीएनएफसी दोनों का ही माल आता था। एचओसी को ये लोग ने बिठा दिया, सब लोगों ने गेम करके, वायबल नहीं है, पोषण नहीं है, लॉस होता है करके। उसके पास गैस बनाने के लिए पाइपलाइन नहीं है। अभी जीएनएफसी को क्या है कि गैस का खुद का पाइपलाइन है, फर्टिलाइजर प्लांट में से गैस मिलता है उसको, तो उसका गैस का पैसा बचता है। उसको बेंजीन बीपीसीएल देता है, एडवांस पैसा उधर देना नहीं है। ये सब तकलीफ एचओसी को आता था। ऐसे ही सर आप जो आरती को बोल रहे हैं, वैसा उसका इन्वेंट्री दिखाएगा, उसने ये टाइम इन्वेंट्री दिखा दिया, बराबर है, उसका वैल्यू नीचे दिखा दिया। अभी समझो नहीं कि लास्ट प्रोडक्ट, ईयर भी था, लास्ट ईयर भी इन्वेंट्री था। सर वो लास्ट ईयर आपने इन्वेंट्री जो बोला वो कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा क्वार्टर। अभी मैं नहीं बोलता हूँ ना सर, ये कोई भी केमिकल कंपनी का जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर सुपर भी आएगा, अनलेस एंड नहीं अनटिल इसका उसका। तो खराब आया। आरती का खराब मतलब मैं तो देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ग्राउंड लेवल पे मालूम है ये लोग क्या करते हैं। अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर सबका एकदम खराब था। अब दीपक का भी उठा के देख लो, एकदम खराब ही रहेगा। नहीं अक्टूबर नहीं नवंबर, वो अच्छा था, आरती इंडस्ट्री का अच्छा था नहीं दिसंबर को। नहीं, मैं तो ग्राउंड लेवल का बात कर रहा हूँ कि ये जो आप प्रोडक्ट बोलेंगे ना, ये अभी देखिए सर मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट 3 महीना हमको मालूम है क्या सिचुएशन था, किसका माल आया ही नहीं है और किसका माल बिका भी नहीं है। आज का तारीख में केमिकल बाजार में इतना मंदी है, इतना मंदी है ना सर, कि सबका फट गया है। खाली प्राइस बढ़ा दिया है। आप खाली मार्केट में जाके एक इंक्वायरी करो, मेरे को 10 टन माल चाहिए, वो इंक्वायरी 3 जगह घुमाओ आप, ऑटोमेटिकली प्राइस 20 रुपया बढ़ जाता है, और 4 दिन के बाद ठंडा हो जाता है। मतलब ये है ना सर, सब फूगा हुआ है, अभी टेम्पररी फूगा हुआ है। कल उठ के गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया ना कि हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी सब प्रोडक्ट में से निकाल देते हैं, तो अब ये सब केमिकल स्टॉक का प्राइस 25 टका हो जाएगा। आप मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक क्या है, एसिटिक एसिड और इथाइल एसिडेट, सर रोज 4 रुपया बढ़ता है, 4 रुपया कम होता है, रोज 4 रुपया बढ़ता है, रोज 4 रुपया कम होता है। क्या प्राइस है? मेथानॉल क्या प्राइस है सर? 8 रुपए का प्रोडक्ट 32 रुपया कर दिया है। अब ब्लैक रोज करके कंपनी है, उसका अतुल के सामने प्रोडक्ट है, रिसोर्सिनॉल, वो हम्म, 2-2 साल तक प्री बुक्ड है सर। अभी वो हम्म, प्रोडक्ट का एक्चुअल रेट है 400 रुपया, बराबर है। हम्म, ब्लैक हम्म, रोज वाला साला बोलता है 3 महीने के माल बाद में माल दूंगा 850 रुपया। ओ बाप रे बोलो बाप। अभी। हाँ मतलब ये सब है, सब ये सब है ना, सब गेम है सर। गवर्नमेंट ने अगर कल बोल दिया ना, अभी कैसे देखो, चीनी कैसे पिघल गया एक ही दिन में, शुगर हम्म, सेक्टर एक ही दिन में पिघल गया ना। इथानॉल हम्म, इथानॉल कर रहे थे, गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइस कैप कर दो,
प्राइस कैप किया तो क्या हो गया, सब एक ही दिन में गल गया, इथेनॉल एक ही दिन में पिघल गया। सब लोग बोलते हैं 20% करेंगे, 25% करेंगे, तो उसका यूज किधर है? मतलब ये सब क्या है मालूम है सर, अभी स्टोरी है, कोई भी स्टोरी। कोई भी धंधे में सर, कोई भी धंधे में मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है, शेयर बाजार होवे, केमिकल होवे, इथेनॉल होवे, ब्लेंड होवे, आदमी लोग को चढ़ा रहे, और रिटेल को माल पहना दिया, बाद में रिटेल मरे और ऊपर वाले लोग ने पैसा बना के क्रीम खा लिया सर। बस यही है, शेयर बाजार में यही होता है, हर 3-4 साल में ये होता है। मैं हर्षद मेहता के टाइम से देख रहा हूँ सर। हार्दिक भाई, सर आपका अतुल के बारे में क्या ख्याल है? सर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, मैनेजमेंट सुपर्ब है, बराबर है, लेकिन ये जो प्राइस पॉइंट है ना, ये जो प्राइस आया है ना अभी 700 रुपया, वो मेरे हिसाब से नहीं नहीं, एक 8,000 800, है। हाँ मतलब सर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है, उसका जो प्राइस है ना, जो ये प्राइस है ना, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कोई भी केमिकल कंपनी का। मेरे को सब सब ओवर प्राइस लगता है, सब केमिकल। सर आप सब देखो, सबसे बेस्ट कंपनी है गवर्नमेंट के पास है, बराबर है, वो यही सब प्रोडक्ट बनाती है। गवर्नमेंट ने क्यों सब प्रोडक्ट अपने पास रखा, आप खाली इतना सोचिए, गवर्नमेंट खुद के पास कौन सी कंपनी रखेगी? अपन पहले उसको नवरत्न बोलते थे, अभी नवरत्न कंपनी का प्राइस 100 रुपया और 150 रुपया। हाँ, और वही केमिकल कंपनी प्राइवेट में जाएगी तो उसका भाव 3,000 रुपया। क्या बेस है सर उसका? सर रातों रात थोड़ी कोई केमिकल वापरने वाला खड़ा हो जाएगा। फिनॉल किधर जाता है सर? लेमिनेशन में, रबर में। तो क्या आपने सनमाइका बनाने का चालू कर दिया दिन ब दिन? मतलब क्या आप घर में एक सनमाइका लगाते थे, उसके बदले 10 सनमाइका लगाएंगे? या आपने फिर टेबल टॉप बनाया, तो टेबल टॉप आपने एक लगाया था तो 4 टेबल टॉप लगा देंगे? बासव के बारे में सर वो सब आपको तो बेस्ट कंपनी है, बासफ वगैरह बेस्ट कंपनी है, लेकिन मेरे को पूरा केमिकल सेक्टर हाइप लगता है, हाइप। और अभी और हाइप करेंगे, क्योंकि क्या है सर, देखिए मेरे को एक लॉजिक समझ में आता है। मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था, मेरे फ्रेंड ने भेजा था, कि चाइना में 75% वो लोग ऐसा करते हैं कि अगर चाइना में अगर आपको कोई प्लांट डालना है ना, तो वो लोग आपको 0% लोन में और 3 साल का टैक्स ब्रैकेट देते हैं। उसके लिए उधर लोग मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करते हैं, और वो लोग उधर किसी को भी, मतलब कोई भी लेबर है, उधर का लेबर इतना चीप है सर। मतलब ये मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन बोलता है गवर्नमेंट इतना पुश करती है मैन्युफैक्चरिंग को, कि उनका मैन्युफैक्चरिंग को पूरा दुनिया से सस्ता आता है। अभी वही चीज इंडिया में मोदी सर करने जा रहे हैं, कि भाई इधर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ, लेकिन इधर के लोग हैं ना आलसू है सर। आप समझो, मैं भी आ गया उसमें। अभी किसी को बोलेंगे ना सुबह 8 से रात को 8 तक काम करो, तो बोलेगा कितना पैसा देता है, प्राइवेट में इतना पैसा मिलता है, गवर्नमेंट कंपनी में इतना पैसा मिलता है, उसके लिए अपना देश पूछे। बाकी सर लोन अपना आज के तारीख में सबसे सस्ता है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टैलेंट अपने इंडिया में सबसे ज्यादा है। वी कैन बीट चाइना, लेकिन सर अभी थोड़ा ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बोल रहे हैं ना, 2-3 साल गवर्नमेंट जो बोल रही है वो अगर पब्लिक सुनेगी और वो हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग होएगा ना, तो कोई भी केमिकल प्लांट सेटअप करने को 5 से 6 साल लगता है, और उसका प्रॉफिटेबिलिटी वायबिलिटी प्लांट सेटअप होने के 2-3 साल के बाद में आता है। वो टाइम तक सेम गवर्नमेंट रहेगी ना सर, तो अपने को चांदी है। बाकी अगर 5 साल के बाद मोदी सर को ये लोग ने कुछ काला धंधा करके हटा दिया, तो सर सब बूमरिंग हो जाएगा। नहीं, मेरा ओपिनियन दूसरा है। हाँ सर। वर्ल्ड में जितना भी बड़ा कंपनी है, हाँ, उधर का सीईओ अपना इंडियन है ज्यादातर। सही बात है सर। अपने इंडिया में इंडियन लोग हम्म, अगर थोड़ा सा मेहनत करे तो 4 चांद लग जाएगा अपने वहाँ, सही सब बात कुछ अच्छा हो जाएगा। मैंने सर वही तो बोला आपको, कि नहीं, यहाँ पे लोग। पण दिक्कत है, यहाँ पे है आलसीपना और करप्शन। बस वो यही दो तकलीफ है। चीज, नहीं तो एक्चुअली इंडिया में जितना रॉ मटेरियल है, हाँ, जितना मिनरल्स है, सब कुछ है, सब कुछ है सर। सबसे ज्यादा है इंडिया में सर अभी नेचुरल प्रोडक्ट्स। सर आपका बात 100% सही है, 100%। लेकिन पब्लिक को क्या इधर मालूम है सर, फास्ट मनी बनाना है, फास्ट मनी। आज पैसा बनाया, कल मेरा डबल टिबल हो जाना चाहिए, मैं करोड़पति हो जाना चाहिए, मेरे पास लंबोर्गिनी आ जाना चाहिए। सर वो सुंदर पिचाई भी है ना, उधर गूगल में गया ना, उसका 10 साल के बाद 15 साल के बाद रिकॉग्निशन हुआ। इधर पब्लिक में पेशेंस नहीं है, मैं भी आ गया सर इसमें।
मैं मेरा भी बात करता हूँ, मैं जनरल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इंडिया को चेंज करना है ना सर, तो मोदी सर जैसे लोगों के लिए कम से कम 10 साल होने चाहिए जो काम करेंगे और दूसरे को काम करने देंगे। सर आप आती इंडस्ट्री बोलते हो, आप वेलियंट बोलो, आप ऑल कैम भी बोलो, सर क्या था वो सब? मैं आपको बोलता हूँ, ये अपना मोतीलाल, अपना अपना सॉरी मेघमणि ऑर्गेनिक, सर उसका भी शेयर, उसका डिवीजन किया है 2 में। उसके पहले हम लोग ने, मैंने उसका 8 साल पहले प्लांट विजिट किया था। उसने हमारे से मटेरियल मांगा था क्रेडिट बेसिस पे 90 डेज पे, तो हम लोग ने उधर प्लांट विजिट किया था। सर प्लांट देख के हम लोग ने उसको बोला कि भाई हम लोग आपको 45 और ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं हम लोग, उसके बाद में ही माल देते हैं। सर अभी वो टाइम में उसका कुछ कैपेसिटी नहीं था। अभी आज 8 साल में ये सब फुगावा कर करके वो आउट ऑफ द इंडिया माल बेच बेच के वो लोग ने एक में से 3 कंपनी किया और 3 कंपनी में से 2 अलग किया। सर 79 रुपीज का सिंगल शेयर था, आज खाली मेक मनी ऑर्गेनिक लिमिटेड का भाव 119 120 रुपया है। अच्छा मतलब 2 कंपनी अलग होने के बाद कैसे सर होएगा? मतलब रातों रात क्या ऐसा कंपनी में ऐसा क्या आ जाता है कि भाई केमिकल का प्लांट का एकदम ऐसा? अरे सर बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको मार्केट में कोई उधार ही नहीं देता है। और कीरी डाइस्टफ, उसका शेयर का प्राइस देखो। डिशमन फार्मा, वो जिसका नया नाम डिशमन कार्बोजन है, अरे उसको हम लोग के मार्केट में चोर बोलते हैं, चोर बोलते हैं, ये लोग के साथ काम नहीं करना चाहिए। 90 दिन 120 दिन। सर पुराना कंपनी आपको बोलूं, आइडिया लिमिटेड, मोपरलाल का कंपनी था, क्या हुआ? उठ गया। क्या हुआ? मतलब ये है ना सर, मिसमैनेजमेंट है सब चीज में। ये सब चीज में, सब आईडीआई में क्या था सर? वो आईडीआई का जयूल देसाई हम लोग को खुद बोलता है 50 रुपए का प्रोडक्ट है ना, 75 रुपए का बिल बनाओ, 25 रुपए मेरे को रोका दो। तो 25 रुपए में 10 रुपया ऊपर का लेवल वाला, उसके ऊपर का लेवल वाला, बोलो अभी कंपनी किधर से टिकेगा सर? Hello, मतलब ये, हाँ सर। sir. I want to know about your. No. You unmute yourself. Unmute yourself. सर अभी, Hardik. हाँ, वो अभी देखिए सर, बेसिकली एक चीज मेरे को समझ में आता है सर, कि आपने जो पकड़ा है ना और आपका जो नॉलेज है ना, मेरे को तो सर आपसे मिलना है एक बार और जानना है। क्योंकि ये सर मेरे को एक चीज बेसिक आप समझाइए कि आपने आज प्लांट डाला, शरद सर ने आज प्लांट डाला केमिकल का, बराबर है? वो प्लांट फायर अप होने में, चालू करने में, फिर वो प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका मार्केटिंग करेंगे, उसका ड्यू डिलिजेंस करेंगे, सर कम से कम 3 से 4 साल लगता है। दीपक को पैदा होके 5 साल नहीं हुआ है, और 5 साल में फिनॉल का डेरिवेटिव प्रोडक्ट वो बनाएगा। क्या बनाएगा? डीए बनाएगा, आइसोफोरॉन बनाएगा, एसिडोन बनाएगा, क्या बनाएगा सर? ऐसा क्या प्रोडक्ट है उसके पास कि दुनिया में जिसके पास नहीं है? सर कोई मोनोपोली प्रोडक्ट नहीं है उसके पास, उसका बेचने को फट जाता है। उसकी मैडम है ना, हम लोग की ऑफिस में आके बैठती है कि सर कैसा भी करो, हमको मार्केट इंफॉर्मेशन दो, क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है, हमको सब रिपोर्ट दो। रिपोर्ट हमारे पास से लेके जाते हैं मार्केट सोर्स का, और फिर वो कंपनी का फूका। मेरे को तो बैलेंस शीट ही पूरा उसको, दीपक का तो आपने बोला ना, उसके लिए मैं सर इतना बोल रहा हूँ, वरना नहीं बोलता था। मेरे को वो कंपनी में पहले से खुन्नस है, पहले से सर। ओरिजिनली दीपक था, उसमें से ये 2 भाई अलग हो गए। वो बेचारे दीपक फर्टिलाइजर का जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइन माल, जेन्युइन, ये हर्डिला केमिकल में से जो साहब लोग गए हैं, उसको दीपक नाइट्राइट वाले ने लिया है, और ये फिनोलिक्स में ये लोग ने लगा दिया है काम पे। कोई कुछ नहीं कर सकता है सर, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक का साहब लोग दीपक नाइट्राइट में, मतलब ये मेन फिनॉल वगैरह दीपक फिनोलिक्स में है। नाइट्राइट जो लिस्टेड कंपनी है ना, उसमें दीपक फिनोलिक्स में ये सब प्रोडक्ट बनता है उसका। अभी क्या अच्छा फिनॉल दे। अभी हार्दिक भाई एक बात हाँ बताओ, सर, हाँ सर। आरती इंडस्ट्री बेचना चाहिए या लेना चाहिए? बेचना चाहिए सर मेरे हिसाब से तो। क्या भाव तक? मेरे हिसाब से हाँ सर। ये 3 साल पहले 75 रुपए का भाव था। सर मैं उसको बोलूं आपको, देखिए मैं कुछ टेक्निकल नहीं एनालिसिस मेरे को नहीं, इतना एक मिनट मालूम एक नहीं मिनट है, एक मिनट एक मिनट फेयर एक मिनट वैल्यू में नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन एक मेरे मिनट हार्दिक को। भाई, एक हाँ सर, मिनट। हाँ बोलिए सर। ये मैं तो नहीं मिला हूँ, हाँ पर एक मेरे 3 दोस्तों के पास में जाके आया, अच्छा, वो गोगरी हाँ रशिश में गूगल। कि वो शेयर चलाओ ना, ये ना हाँ वो मेरे दोस्त लोग बहुत बड़े आदमी लोग हैं, हाँ हाँ, तो मेरे को मालूम है किसी आदमी शेयर चलाने को कब जाता है, जब उसका वो कोटा होता है। सही बात सर। सही कंपनी वाला नहीं जाएगा। मैं वही तो बताया सर आपको कि मेरे को अच्छा तो अभी ये, आप मेरे को तो सर है ना सब प्राइस सब, आप ये नहीं कोई भी हो, पोशाक लिमिटेड सर, उसका प्राइस 1 साल पहले 6,000 रुपया था, 12,000 रुपया प्राइस है शेयर का। क्यों?
ऐसा क्या हो गया रातों रात? मतलब क्या उसका प्रोडक्ट 175 में से अभी ये देखिए जीएनएफसी वाला, मैं खाली एक ही एग्जांपल देता हूँ, ये क्वार्टर का रिजल्ट देख के पागल कर दिया लोगों ने, पागल। बोलता है उसका टीडीआई का प्रोडक्ट डबल हो गया है, एनिलीन उसका डबल हो गया है, उसका फर्टिलाइजर प्लांट में से नीम एक्सट्रैक्ट निकलने वाला है तो साबुन बेचेगा। अरे सर कभी जरूरत गिरेगा? अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास, अगर सर कोई प्रोडक्ट है जो आप 100 रुपए का प्रोडक्ट 200 में बेच सकते हो, तो आप काय के लिए नीम एक्सट्रैक्ट और प्रोडक्ट बनाएंगे? क्यों क्यों वो ऐसा सब करेंगे? सर कुछ नहीं है। आज का तारीख में एक एग्जांपल देता हूँ, उसका एनिलीन करके प्रोडक्ट है, इंपोर्ट का प्राइस आज का तारीख में इंपोर्टर 158 रुपीज में बेचता है, जीएनएफसी ने प्राइस रखा है 174। सर एक महीना हो गया, पूरा मई महीने में उसका जो सेल्स है ना, उसका 25% माल गया है जीएनएफसी का। आप कोई भी डीलर को गुजरात में उठा के पूछ लो, अगर मैं झूठ बोलता हूँ। 25% माल गया है, खाली बैलेंस शीट शेयर बाजार में दिखाने के लिए और स्टॉक का प्राइस पकड़ के रखने के लिए वो लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। और अभी डाल दिया है 26-27 तारीखों के बेंजीन बढ़ गया है $50 से $100 की प्राइस में। अभी रिलायंस और बीपीसीएल आ जाएगा कि हम लोग 6 रुपए बेंजीन बढ़ा रहे हैं। मतलब वो लोग वापस और बीएससी एनएससी में सर्कुलर देंगे कि हम लोग वी आर नॉट रिवाइजिंग द प्राइस ऑफ एनिलिंग। प्रोडक्ट कुछ बिकने वाला नहीं है, उसका कुछ नहीं बिकेगा, क्योंकि सब लोग प्रोडक्ट फैक्ट्रियां, गुजरात में 70% फैक्ट्री बंद है सर, 70% प्रोडक्शन बंद है। आप अहमदाबाद में जाएंगे ना, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में, आप किसको भी पूछ लो, सब प्लांट का सब प्रोडक्ट बंद है। आप खाली पता है स्पेशल, हाँ, खाली स्पेशलिटी केमिकल, मतलब जो माल मिलता नहीं है ना, वही माल एक्सपोर्ट हो रहा है, वही फैक्ट्री चल रही है, बाकी सब रो रहे हैं। बाकी सब ये शेयर बाजार में प्राइस फुगा हुआ कर करके अपना फैक्ट्रिया चला रहे। हार्दिक भाई, ऐसा। 3 साल पहले 75 का भाव था आरती इंडस्ट्री का। हाँ अभी सर मैं डे टू डे तो ट्रैक नहीं करता नहीं नहीं, प्राइस, और हाँ सर, सुनिए ना, हाँ सर, अभी 750 है। हाँ सर, मैंने वही बताया ना आपको, 750-800 है, मतलब हाँ वो भी तो आई थिंक सो अरे 1000 रुपए के ऊपर जाके आया है। सर आप सुनो ना, सॉरी सॉरी सर। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? सर 500 रुपया, ओके। वो भी ज्यादा है। हाँ अगर लेकिन सर देखिए, मैं 500 रुपया बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से, मेरे जजमेंट से, मैं मेरे को जितना मालूम है वो हिसाब से बोल रहा हूँ। आई एम नो वन कि मैं उसका कंपनी को डिग्रेड कर रहा हूँ, या आई मे बी बायस्ड आल्सो टू द कंपनी, नहीं, लेकिन मेरे आप नहीं सुनिए, आप 500 रुपये से वो हाँ कंपनी की कीमत हो जाती है 19,000 करोड़। बराबर है तो लगता है कि गुगरी 19,000 करोड़ का आसामी है। सर। अभी वो मैं देखो सर डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ टेबल टू टेबल बैठता हूँ, इधर किसी ने रिकॉर्डिंग करके उधर डाल दिया ना, वो मेरा उधर एंट्री बंद कर देगा। मेरा तो डे टू डे में उससे मतलब रिलेशन है, उसके मैडम से, उधर से कंपनी से। लेकिन क्या है सर, मैं बोलता हूँ सब ओवर प्राइस है, बस आप ठीक, इतना समझ लीजिए, ओके। सब ओवर प्राइस है। ये सर अभी दूसरे। हाँ बोल। और एक एग्जांपल दूं सर, और एक एग्जांपल दूं। हाँ एक है बोलिए। ना, एक एक अपना एक्सप्रो इंडिया करके, अगर आपने नाम सुना रहेगा। क्या क्या नाम? एक्सप्रो इंडिया, हाँ। अभी सर उसका स्टॉक का प्राइस, आप खाली चार्ट, आप अगर है कंप्यूटर पे, खाली चार्ट खोल के देख लो। वो मार्केट का एक बड़ा बोलते हैं नामचीन इन्वेस्टर, वो जो आइटम स्मॉल कैप में हाथ डालता है ना, वो आइटम को 4 चांद लग जाते हैं। अभी सर एक्सप्रो इंडिया इंडिविजुअल बेसिस पे, वो खुद का कंपनी था, बराबर है, उसको 5 साल पहले ये एसआई ग्रुप ने ले लिया, मर्ज कर दिया खुद में। बाद में उसको वो लोग को वायबिलिटी नहीं लगा, तो वो कंपनी डीमर्ज कर दिया, मतलब अलग कर दिया खुद में से एक्सप्रो इंडिया को। और वो एक्सप्रो इंडिया बना दिए स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट, जो ऐसा कुछ नहीं है कि उसका प्राइस आप सर 1200-1500 रुपया है। अभी आशीष खचोलिया ने उसके अंदर स्टेक लिया ना, उसके लिए 150 रुपए का प्राइस 1500 रुपए कर दिया। क्यों? उसके अंदर आशीष खचोलिया का स्टार लग गया। सर हाँ, आप खाली उसका चार्ट देखो, मेरे को तो डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं ऐसा होता है ही, सर। ये शेयर बाजार ऐसा ही है नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर, ये फूगा हुआ है। आप यार। आशीष खचोलिया के पीछे, अगर हार्दिक भाई ने ले लिया 500 रुपये में, 1500 रुपये में वापस हार्दिक भाई चढ़ गए, और आशीष खचोलिया भाई 2000 में निकल जाएंगे, हार्दिक भाई पकड़ के बैठेंगे 3000 तक। 3000 आएगा 3000 आएगा नहीं सर, 300 आएगा। हम्म, सर कंपनी कौन सा लेना चाहिए मैं बोलूं? विधि स्पेशलिटी केमिकल, क्या हाँ, कंपनी है? विधि स्पेशलिटी केमिकल, विधि। ऐसा हाँ सर, ऐसा हाँ, कंपनी होना चाहिए सर। स्लो एंड स्टडी,
जो है वो अभी प्लांट डाला है दहेज में, एसिडिक डाइस बना रहा है सर। वो ऐसा कंपनी है, 65 रुपए का 5 साल में 300 रुपया प्राइस किया है, उसका भाव होना चाहिए 1000 रुपया। अभी वो जिधर कितना? एक्सपोर्ट करता है अभी सर कुछ मेरे हिसाब से 350 होना चाहिए, लास्ट देखा था तभी हाँ 350 या 450, लेकिन उधर से भी वो थोड़ा क्रैश हुआ है उसका। फ्यूचर आप एक बार दहेज का प्लांट विजिट करके आइए सर। और वो जो आदमी जो हिसाब से वो, उसका पूरा नाम था विधि स्पेशलिटी, अभी उसका नाम है विधि स्पेशलिटी फूड। वो कलर बनाता है, फूड कलर्स। अभी वो जिधर जिधर एक्सपोर्ट करता है उसका फ्यूचर क्या है वो, उस ऐसा सब कंपनी लिस्टेड हो ना तो सर लेने को मजा आवे कि भाई चलो 350 से नीचे में जाने को कितना है, 800 रुपीज तक। ऊपर के लिए आपके पास जगह है। ये तो सब बढ़ा के रख दिया है सर, सब बढ़ा नहीं, के रख पर दिया। प्लांट विजिट के लिए हमको वो क्यों बुलाएगा? नहीं वो बुलाएगा नहीं सर आपको। आप अभी आप जो लेवल पे है सर, आप इतने बड़े आदमी हैं, अगर प्लांट विजिट आपको करना है तो आई थिंक सो वो प्रोसीजर रहता है और वो लोग अलाउ करते हैं। मेरे ओके बहुत सारे लोगों को सर, मतलब, आप आरती इंडस्ट्री का ज्यादा नहीं बोलेंगे नहीं सर क्योंकि अभी क्या, आपका उठना बैठना है। हाँ सर। और मैं आर्ट इंडस्ट्री में, मैं जनरल केमिकल फर्टिलिटी के लिए ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मैंने फिर भी बहुत सारा बोल दिया है। मेरे को तो हाँ सब सब ये ब्लैक रोज क्या ट्रेडर है सर, ब्लैक रोज कंपनी है वो, ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, हाँ ही इज जस्ट एन एजेंट एंड अ ट्रेडर। अभी सब बहती गंगा में सब लोग हाथ धुला रहे हैं, वो कहाँ मैन्युफैक्चर है? 10 साल के पहले व्हाट वाज ब्लैक रोज, नरीमन पॉइंट में एक ऑफिस था। क्या है सब सर ये, मतलब बहुत सारा कंपनी है जो छोटे लोगों को 1 रुपए का 10 रुपए, 10 रुपए का 100 रुपए, 100 रुपए का 1000 रुपया बना दिया है। लेकिन मेरे को रिटेलर को खाली इतना ही बोलना है, भाई आपका जो एपेटाइट है, कोई भी प्रोडक्ट से शादी मत करो। शरद सर बोलते हैं ठोको तो ठोको, रखो तो रखो, निकल जाओ। मेहरबानी करके प्रेम मत करो किसी से। आपने रिलायंस भी देखा है, टाटा भी देखा है सर। मेरे को तो आप सब बोलते हैं, टाटा में भी देखिए ना सर, टाटा का शेयर का प्राइस किधर से किधर हो गया। टाटा एलेक्सी कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, 9000 का प्राइस। मतलब ये मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है, चिप शॉर्टेज। अरे क्या चिप शॉर्टेज, ओके 4 महीने हार्दिक भाई, का। हार्दिक ओके भाई सर, ओके अभी आप शांति का आओ पकड़ो, आपको मैं वापस लेता हूँ ओके सर, और ओके दूसरे स्पीकर को लेता हूँ मैं। ओके सर, ओके। योगांदा बोलो। No, I have a question on since you're discussing on specialty chemicals. यस One is Gujarat Alkalis, and the other one I want to know is about Atul. If you all have any idea on this, and also as a fertilizer, GSFC. Yeah, I ओके just wanted some idea. हार्दिक भाई आप ही आंसर दे दो। सर हम्म, ये अभी ये इन्होंने पूछा है, मैं नाम क्या है, किसने क्वेश्चन पूछा है? Atul Industries is अतुल, one. अतुल सर 8,000. मेरे को मालूम है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अतुल इंडस्ट्री, आपने जो तीनों कंपनी पूछा ना सर, वो तीनों कम से कम 40 साल पुराना कंपनी है, बराबर है? Yes, yes. You might be in share market since last 10-20 years. I am Have in you the seen, market from 91. right? From 91, Yes. have you seen the price of Atul going to No, 8,000? I No. was only Why? looking since you said it is Yeah. a Why? specialty company. I have Sir, basically been more into tea, textiles, right, Reliance, right, Levers, no right, no ITC, Nestle's. right. no Sir, you Yoganda is understand the asking question. you that सर मैं have क्या you बोल, ever आपने since कभी देखा है 91 क्या 8,000, 91 से अभी तक 8,000 का भाव देखा है अतुल का आपने? No, I have not नहीं been तो क्या following. फंडामेंटल, क्या चेंज हो गया 40 साल में? आपको No, मालूम है I'm सर? asking you, या sir. I am asking you because you know this subject better या than me. दैट इज व्हाट आई एम I am आस्किंग। not आई एम, following, I just invested last year राइट, दैट just इज to व्हाट आई एम आस्किंग। diversify my investment, nothing Yeah. else. See, sir, what you should diversify in such a company which are Hmm. fundamentally strong and which are not run up. अरे सर ये आरती, अतुल, अतुल का आप बताते हैं, उसका पीपी यूनिट है, अमल प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट है, वो लीजिए ना। 8,000 में अतुल लेंगे, उससे अच्छा अमल लीजिए 150 रुपये में, 100 रुपये का प्राइस है, उसका भी हो गया 200 रुपया प्राइस, उसका ही प्रोडक्ट है। आरती अमल, ये अतुल वगैरह कंपनी है ना सर, बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन ये चाइना +1 का फैक्टर है जो केमिकल सेक्टर को खींच रहा है। और केमिकल सेक्टर ये हैज बीन लाइक दैट सिंस लास्ट 15 इयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 साल से केमिकल सेक्टर चला ही नहीं है जो अभी चलाया है, और ये हर तेजी में एक एक सेक्टर चलाते हैं। आप अगर चेक करेंगे, इफ यू आर इन द मार्केट सिंस 91 यू आर बी नोइंग ऑल दिस, आई शुड नॉट से। लेकिन सर ये जो जीएसएफसी है, गुजरात अल्कली है, गुजरात हेवी केमिकल है, जीएचसीएल, वो सब प्रोडक्ट क्यों अभी अभी क्यों चल रहा है? जीएचसीएल का कोई प्रोडक्ट नया नहीं है। सोडा एश, सोडा एश नया है सर। वो सोडा एश तो आपको मेरे को सब चीज में लगता है। अब 500 साल पुराना है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं आ गया है कि रातों रात सोडा एश का प्राइस 100 रुपए का 200 रुपया हो गया है। आप समझ रहे हैं? समझ गया। आप एसीटोन यूज करते हैं घर में, लेडीज लोग नेल पॉलिश वापरती है ना, नेल पॉलिश, करेक्ट। उसमें जो केमिकल होता है वो एसीटोन है सर। उसको डाइल्यूट करके बॉटल में भरते हैं। तो क्या Correct. एसीटोन अभी नेल पॉलिश आपने वापरना कम कर दिया? नहीं ना, वही वापर रहे हैं। वो एसीटोन जब भी आप 5 साल पहले वापरते थे तभी 100 रुपया था, अभी 15 रुपया हो गया। तो उसका कंपनी 100 रुपए का प्रोडक्ट 15 में बेच रही, तो प्रॉफिट कैसा कमाएगी सर? नहीं बनाएगा। ओके। तो फिर So you तो say क्या? this is the time to sell Atul, See, no, Gujarat no, sir. Alkali. No. I'm nobody. Okay. To tell you, sell. No, I Nobody. don't put Sir, any see, personal first thing listen. on it. No, sir. Yeah, First I'm listen saying to me. you said. I'm saying you said. Okay. Sir, I'm nobody to हार्दिक tell. सर, अरे हार्दिक भाई, आप रहने दो ना, मैं बोल दिया। ओके सर, ओके। हार्दिक सर, आपका एग्रो केमिकल्स और फर्टिलाइजर पे क्या व्यू है? मतलब जो एस्टेक लाइफ सर, साइंस। सर ऐसा है, एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर में नहीं बोलता हूँ मैं, जो सेक्टर में हूँ, केमिकल सेक्टर में, उसमें मैं बायस हूँ। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि हलवाई कभी मिठाई नहीं खाता है। आप समझ रहे हैं? हाँ। हलवाई कभी मिठाई नहीं खाता है। एक चीज समझ लिए, मेरे को सब केमिकल स्टॉक का प्राइस ज्यादा ही लगता है। मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि कैसा पॉसिबल ही कैसा है। जब भी एक ट्रेडर 100 रुपए का आइटम 102 में बेचता है, या 100 रुपए का आइटम 200 रुपए में बेचता है, वो प्रॉफिट कमाता है। कंपनी बेच सकती है क्या 100 रुपए का प्रोडक्ट 200 रुपए में? आप लेंगे क्या सर? आपको आज मैगी 10 रुपए में देते हैं तो आपको खाना है तो आप लेंगे ही। लेकिन आपके पास अगर मैगी के बदले रामा नूडल्स आया और वो बोलेगा मैं 5 रुपए में देता हूँ, तो आप रामा नूडल खाएंगे ना, आप फिर 10 रुपए देंगे। तो केमिकल में देयर आर वास्ट चॉइसेस। अभी टाटा केमिकल है, जो प्रोडक्ट बनाती है वही जीएचसीएल बनाती है, बराबर है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल जो बना, नहीं मतलब सब एक ही प्रोडक्ट 5 कंपनी बनाती है, सबके पास चॉइस है, और सब लोग प्राइस ऊपर नीचे रखेंगे। अभी का एग्जांपल लेता हूँ, यूरिया, टेक्निकल ग्रेड यूरिया बनाती है जीएनएफसी, उसका प्राइस रखा है 81 रुपीज। जीएसएफसी है जो भाई साहब ने अभी पूछा, जीएसएफसी कैसा, जीएसएफसी ने उसको कम्पीट करने के लिए प्राइस कर दिया 75 रुपीज। फिर भी उसका माल नहीं बिक रहा है जीएसएफसी का, क्योंकि उसका माल मार्केट में आता ही नहीं है। आप समझ रहे मेरा बात? हाँ। मतलब ये टेक्निकलिटी सर सब समझ के इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक्स पढ़ेंगे। और सौरभ सर ने स्टार्टिंग में ही बोला, बैलेंस शीट सब ये लोग सब है ना, वो रिलायंस के धीरू भाई जी ने सबको सिखा दिया है पाउडर, लिपस्टिक, केमिकल कैसा लगाने का बैलेंस शीट को। तो सर मैं तो अभी भी बोलता हूँ 20% लाइफ साइंस पे पूछना था। नहीं सर, वो नहीं बता सकता हूँ सर। हार्दिक मैं सर, आपको बोला ना, मैं केमिकल सेक्टर बता सकता हूँ। हाँ सर। हार्दिक सर, मेरे को एस्टेक लाइफ साइंस पे क्वेश्चन है। एस्टेक लाइफ साइंस सर स्पेसिफिकली स्टॉक के ऊपर आई कैन नॉट कमेंट, मैंने अभी सर को भी बताया। लेकिन मेरे को केमिकल सेक्टर, अभी देखिए उनका फ्यूचर अपना मार्केट में क्या है, 2x 3x 5x 10x ऐसा प्राइस गिनते हैं। अभी और क्या वैल्यूएशन पकड़ेंगे, कैसे मैं बताऊंगा सर? मैं आपको आज बोलूंगा हैशटैग बेच दीजिए, कल उसके हैशटैग वाला ने आके कुछ बोल दिया तो उसका प्राइस 10 गुना हो जाएगा। आप मेरे को खाली देंगे हार्दिक भाई ने मेरा माल बिकवा दिया। ओके सर। मैं तो ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ सर, मैं जमीन पे खड़ा रह के जो देखता हूँ वो बता रहा हूँ। बाकी डिसीजन लेना बेचना वो आप डिसाइड करो। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। मैं शरद सर को एग्री करता हूँ कि शरद सर इज 100% नॉलेजेबल पर्सन, ही हैज अ वास्ट नॉलेज। और वो अपने हिसाब से जो पब्लिक को नॉलेज दे रहे हैं, मैं तो ये दूसरा या तीसरा ही है शरद सर का, मैं दूसरा तीसरा इसमें ही आया हूँ, सर को मिला भी नहीं हूँ। लेकिन आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद द नॉलेज ऑफ द सर, उसके लिए मैंने बोला। सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑल, मैंने थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लिया सबका। नहीं। बोलो Fact Finder, you have anything to say? I don't actually track many of these companies, so not too much. No, but anyway,
if you want to express an opinion generally. No, so if you recall, Sharad, I was slightly more positive on the markets in the last 1.5 weeks, and I guess the reason is simply that the US. There's obviously this entire. If you look at the US rates market, he seems to be suggesting the chances of a 75 basis rate hike is now behind us, Yes. and obviously, so that gives some sort of a sigh of relief. Mm. At the same time, you have this in your news, and obviously, if there is if the U.S. markets have to move up, continue to move up, then I guess it is large cap tech because those guys are still generating a lot of cash. Yeah. Uh, it is attractive. Now, coming to the other big news is on China, where on one side they've talked about a very big shift in Shanghai, but what people forget is that if you think about it from a size of perspective, $40 billion or 300,000, 300 billion renminbi is not a very big number in the China. Mm. But of course, markets will just give a sigh of relief. Mm. Uh, and at the same time, if you look at Beijing, they have still, still got a lot of restrictions. But the bigger issue, in my view, is that China will continue to remain restrictive to some extent because of one simple reason that they haven't as yet got the trial data on their mRNA vaccine. And till the mRNA, they will not use the Pfizer mRNA vaccine because it'll look really bad. So they want to use a Chinese mRNA vaccine. And so that might happen only by December, Jan. So till then, you could have some stop and start, stop and start, stop and start. As far as I think the next couple of weeks is concerned, we'll have more news on Europe going for this embargo on oil as well as gas. So I have a feeling that the combination of China reopening and this entire news on oil and gas can probably push up oil and gas prices high up a little bit. Having said that, the data from US on the driving season has not been very positive. There's not been much of an uptick. So clearly, high gasoline prices Okay. are affecting demand over there. But I wouldn't too worry too much about it because inventory levels in general are quite low. Plus, new refineries are starting up. So typically, when new refineries start up, they consume a lot more inventory. The interesting thing to me is this entire noise around taxation of extra profit from the energy companies. Mm. Yeah. Um, Definitely. yeah, so my view is slightly different from what the market's view is. My view is that while everybody is focused on the oil E&P companies like all the ones that drill out oil and supply crude oil, which has got hurt actually. I don't want to mention names. But if I look at the pricing of retail fuels across the world, diesel has become the most expensive. So if I look at the US as a good benchmark, diesel prices have gone up 100%, I think, in the last 12 months. Okay. But but actual crude oil has gone up 40-50. Okay. Not 40-50, in fact, 35%. Yeah. The reason why retail fuels have gone up so much is because your refining margins have gone up. They used to be $10 on an average for the last 10 to 20 years. Now refining margins are at $50. So if you think about it, the windfall gains on the energy sector has not been earned by the oil company producing companies.
it has been earned by the refining companies, where their refining margins have gone up 400%. So one doesn't need to do the math to figure out that will the governments look at only oil companies, or they will look at refining companies as well and put a tax. Yeah. No, but in India, you don't have a separate refining company, sir. Sir, you don't. We are some of the biggest refining companies in the world in India. Reliance? Yes. Yes. Sorry. I forgot. I don't want to mention names, but No, I forgot. Uh, yeah. I have a question on this. I believe this windfall gain tax has also been implemented in UK. So, do you have insight into it? What kind of companies did they brought into under this windfall gain? They are saying energy companies. Okay, Now, that is energy a is very broader term. broad, Yeah, very right. right? Yeah. And the energy companies are saying that, listen, we are not making the windfalls. It is the refining companies that are making the infalls. So why look at only? Don't restrict it only to ENC companies, which is, I think. So I don't know if it's actually announced or the intention to announce it. So that is the important thing to keep in mind. But one thing is very, very certain is that taxes in India are going to go up. Maybe the government will introduce a special cess on, you know, Income. income tax this year for the corporates for sure. That's my personal view, because they know that corporate India is in decent shape, at least as far as profitability is concerned. They've given them PLI schemes, so why do they need to give them tax? They can bear slightly higher tax for some 1 year, and in all your taxes on capital gains, all of it is definitely going to change. That's for sure. The government is testing it. That's why that person from the media mentioned it, because that is the way to test how people are reacting to it. If people don't make noise about it, then the government is okay, fine, we will introduce it. That's my reading. And any idea on the balance sheets, how they are made? We just discussed about RP Industries. So that's a very company specific and complicated. I do not want to get into that company specific discussions. No, generally. Do you think some of the balance sheets are made up? I mean, the biggest worry for me is the big daddy who is acquiring every asset in the country. Oh, yeah. I mean, what happens if he goes down? No, Right? not if he goes down. He will go down. It's matter of time. Mm. That's for sure. Written on the wall. He is going down. Because such a kind of leverage, unheard of, unthinkable. No, it's not good. It's not looking good. It can be tomorrow, next week, next month, next year, but it will happen. Okay. राजेश जैन बोलिए. राजेश जैन, unmute yourself, please. हेलो. Yeah, please. जी सर, ये केमिकल डिपार्टमेंट में बोडाल केमिकल करके मेरे पास पड़ा है, तो इन्वेस्टर हूँ मैं छोटा. 200 शेयर मेरे पास बोडाल केमिकल पड़ा है, और सर आपका नाम बहुत सुना हुआ है, और आपका हर बात को मैं थोड़ा अच्छी तरह से समझना चाहता था, और आपकी बात मुझे अच्छी लगती है. ठीक है, पर बोडाल केमिकल मालूम नहीं है. हार्दिक भाई, आप लाइन पे हो तो बता दीजिए कुछ है. सर बोधाल अभी लिस्टेड है. हाँ, लिस्टेड है अभी. हाँ, लिस्टेड है. वो कंपनी भी टेक ओवर हो गया, मालूम है आपको? नहीं. 3 साल पहले. वो जरा पढ़िए आप. अच्छा. वो बहुत बड़ा ग्रुप था. हाँ. अभी भी है, लेकिन उसमें 2 या 3 कंपनी, उसका जो आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं पहले माल सप्लाई करता था, हम लोग ने भी बंद किया, एचओसी बंद हुआ उसके बाद में.
लेकिन जेके कैम करके कंपनी था, उसको उसने टेक ओवर किया। उसका टेक ओवर करने के बाद इसका हालत खराब हो गया। अच्छा। मतलब आप एक बार फिर भी डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा प्रोडक्ट वगैरह। अभी तो जी मैंने जी उसको 4-5 साल से कुछ हाथ लगाया नहीं है, लेकिन जी। एक जमाने में उसका नाम भी है अतुल आरती, वो सब में आता था मार्केट में उधर। हाँ लेकिन हाँ क्या है, अभी ऐसा ही एक कंपनी का मेट्रो कैम इंडस्ट्री, अगर किसी को हाँ, मालूम मेट्रो। है। हाँ बराबर है, मतलब वो मेट्रो कैम बोदल वो सब अहमदाबाद का, नरोडा ये अहमदाबाद में ही सब। हाँ अहमदाबाद नरोडा उधर का ये सब बड़ा बड़ा कंपनी। आज बोदल का नाम बहुत बड़ा है, उसने जी 3-4 सर। कंपनी टेक ओवर खुद में भी कर ली है। आप एक बार हम्म। फिर भी पढ़ लीजिएगा, मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगता है सर केमिकल जी सेक्टर सर। में। अभी आप शरद सर को पूछेंगे ना, वो हिसाब से हम्म। गो विथ ओनली बिग वंस, डोंट ट्राई टू फाइंड आउट हिडन जेम्स, वरना आप हाइड हो जाएंगे सर। ये ओके। केमिकल सेक्टर, हाँ मतलब केमिकल सेक्टर में आपका पैसा मिला बनाओ। अभी हाँ मैं आपको एक ही बोलता हूँ, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, हाँ उसका खाली आप रिपोर्ट पढ़ लो, बराबर है। हाँ अभी वो शेयर 3 साल से 65 रुपए में ही पड़ा है, 50 हाँ। से 70 रुपए में। मेरे हिसाब से उसका भाव कम से कम 300 रुपए होना चाहिए। क्यों नहीं ओके बढ़ रहा ओके। है? उसके पास सब कुछ है जो ये दूसरा सब कंपनी में होना चाहिए। ये खाली है ना ट्रेडर हाँ, लोग के, या वो जो गेम करने वाले लोग रहते हैं ना, क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, वो लोग के रडार ऑपरेटर। पे आया, ऑपरेटर उनके रडार पे आया नहीं है। ये इनके रडार पे आएगा ना, तो इसको हाँ भी है ना वो हाइकल केमिकल साला चोर कंपनी। हाँ, हाँ इकल केमिकल चोर कंपनी है वो, बराबर। हाँ करेक्ट सर, हाँ करेक्ट है। हाँ। हाइकल केमिकल एक नंबर का चोर कंपनी है। उसने हम्म। साला शेयर का प्राइस 130 से साला 400 लेके गया, और अभी बोलो घुसा बोलो। दिया सबके अंदर। सब बराबर है। सही सही, करेक्ट सर, करेक्ट हाँ बात है सर। हाँ, तो ऐसा सब कंपनी चलता है, और हम्म। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चलता नहीं है। तो मेरे को तो सर दिमाग मेरा काम ही नहीं करता। मैं खुद है ना, मैं इतना बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त ने जबरदस्ती मेरे को दीपक नाइट्राइट का 50 शेयर दिलवाया था। वो भी हम्म। मैंने उसको बिना बोले बेच दिया। मेरे को बोलता है हार्दिक रख, मैं बोला मेरे को 5 शेयर भी नहीं लेने का इसका, 5 अच्छा। भी नहीं लेने का। ओके हार्दिक भाई, ओके 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 राजेश सर, भाई। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। शरद सर एक ही सवाल मेरे को आपको पूछना है, सॉरी टू हाँ डिस्टर्ब सर। बोलो। लास्ट स्पेसिस में मैं पूछने जा रहा था और स्पेसिस बंद हो गया। सर हम्म, आपका व्यू क्या है मार्केट के लिए? मतलब 14,500, 12,000, 12,500 आपको लगता है सर आएगा? कि फिर ये अभी देखिए ये सब नाटक 2-3 दिन से चालू हो गया है कि फेड अभी 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक नहीं करेगी, 15,700 में बॉटम बन गया है। तो ये मतलब क्या था सर, रिटेलर का माल पड़ाने का धंधा था कि सर आपको क्या मतलब, आप नहीं आपका नहीं व्यू नहीं क्या है नहीं, सर? मेरा व्यू ऐसा है कि फिलहाल अगर तेजी भी होता है थोड़े टाइम के लिए, इंडिया में तेजी नहीं होएगा। अच्छा इंडिया में फैक्टर्स बहुत अलग हैं, यूएस में बहुत अलग है। ये ये मुमकिन सर, नहीं है। सर यूएस में मैं अभी, मेरे कजिन्स लोग बहुत है वहाँ पे, मतलब मेरे 2-3 दोस्त लोग वहाँ से अभी आए भी है। वो हम्म, लोग सब उधर अच्छा अच्छा कंपनी में काम कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं अगर फेड ने ये टाइम रेट बढ़ाया ना, तो भी उधर रिसेशन बैठने ही वाला है 100%। उतना अलग खराब है। अभी आई डोंट नो द फैक्ट, उसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर नहीं इफ यूएस इज इन रेसेशन, तो वर्ल्ड में उसका क्या इफेक्ट होएगा? उसका इफेक्ट नेगेटिव ही रहेगा सर, नहीं नहीं, एज फार एज आई नो। हाँ हार्दिक भाई, सर। अभी दिमाग में आरती इंडस्ट्री चल रहा है खाली। सर अभी वो तो उसका आपका श्योर रिजल्ट शॉट आया पहली है। नहीं, वो रिजल्ट आया था हम्म, शुक्रवार शाम को। तो बराबर उसका पूजा करना है या कंधा देना है, वही डिसाइड करना है। बराबर। नहीं सर, ऐसा क्या है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, वो तो आपको मालूम है सर। लेकिन अभी हम्म, ये सब क्या होता है, पहले ऐसा सीन था कि जो दिन रिजल्ट आया वो दिन स्टॉक को 15-20 टका बढ़ाते हैं। अभी का सीन ऐसा हो गया है कि रिजल्ट आया, मार्केट एक्सपेक्टेशन नहीं है तो उसको ठोक देते हैं। कितना भी अच्छा एसआरएफ का रिजल्ट देखो सर, मैं एसआरएफ जैसा कंपनी भी अच्छा कंपनी है, एसआरएफ इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, एचएलई ग्लास कोट है सर, वो सब हम्म, कंपनी ऑलरेडी बढ़ चुका है जो किसी का रडार पे नहीं है। अभी एचएलई ग्लास को 250 रुपए से 4,000 रुपया हो गया, कोई रिटेलर ने लिया ही नहीं, क्योंकि मालूम है, ऑपरेटर ने गेम कर दिया है। अभी मालूम है। जीएमएम मैंने जीएमएम वो ट्वीट किया था जब भी 500 का भाव था। जीएमएम फॉडलर सब रिटेलर के पास है, वो बढ़ा ही नहीं है सर, साढ़े वो तो चार हजार कपास। मतलब सर अभी जीएमएम फॉडलर बकवास, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर। अभी वो दोनों एक ही सेक्टर है, उधर सेम सेक्टर।
SRF क्या है सर? मतलब मैं यो सेक्टर का बताना चाहता हूँ कि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू ऑपरेटर के दिमाग में चढ़ना चाहिए कि भाई 100 का 3000 करना है बस। फंडामेंटल सब घर पे गया, जैसा आपने बोला ना पाउडर लिपस्टिक लगाते हैं, यही है सब सर। ओके ओके द फैक्ट फाइंडर। सर ये 2 स्टॉक्स के बारे में पता करना था सर से। एक मिनट अमित भाई एक मिनट। ओके ओके। द फैक्ट फाइंडर। Yeah. So I came across a very interesting thing. I don't know how many of you recall. Some time ago, I had written a tweet about and discussed about, whenever the rupee depreciates, the RBI makes money Yeah, because yeah. their assets are in dollars Mm. and their liabilities are rupees. I don't know how many of you came across the RBI balance sheet. They published their 2021 for 2022 financial year, their balance sheet, maybe 3-4 days ago. What really came out interesting, I mean, they obviously, if you look at in FY22, they only gave a dividend of 30,000 crores to the government of India. Yes, In FY21, they gave 99,000 crores. yes. Now, what happened? They said that there was a big. They had put some one. The reason why they are, you know, their profit fell down so much, they said, is because they were doing reverse repo transactions and hence they made losses over there. And there was a cost, the interest cost of doing reverse repo, hence their profits came down. But when you looked at the balance sheet, there was a very interesting thing. The reverse repo only explained 18,000 crores. The contingency fund of RBI was written down by 1.1 lakh crores. Mm. Okay? Mm. Because of that, your profit fell from dividend fell from 99,000 crores to 30,000 crores. Mm. Now, if you go into the details of why they made such a large loss and such a high contingency, is because they reduced their foreign investment account by 94,000 crores. And why that happened is because the RBI holds US G-Secs, Mm. and US G-Sec yields went up. When Mm. yields go, the value of your bonds go down. Yeah. So that's what happened. Now, why is this important? This is important because last year in FY22, government's tax revenues were very good. But the government is getting very worried about FY23, which is why they're borrowing. So if now government basically wants more revenue, but we know that US yields have gone up, which means RBI is sitting on more losses. Now to make up for those losses, and on top of that, pay a much better dividend. Last year they paid 30,000 crores. Government will be happy if they give 90,000 or 1 lakh crores. They'd want that. So RBI will, in my view, what will benefit the RBI? I won't say RBI will do it, but it is natural for me to think that the rupee will continue to depreciate slowly and steadily from here. And by doing so, the RBI makes up for the losses on the US GSEC portfolio. So my view is that the rupee continues to depreciate slowly and steadily, maybe 80, 81, very, very possible. Because the more rupee depreciates, the more profit RBI sits on, and at least they can make up for the losses on the bond portfolio. That's all I had to say. I don't think anybody's talked about this. This is a very, very important development. Yep, it is. But in that case, inflation is going to shoot up, and that will not be very healthy for the government. See, inflation, in my view, that is a misconception that inflation shoots up just because the rupee depreciates. Look at the construct of CPI. 40% of that is your food. How is food? Your wheat and rice prices are not going up because petrol and diesel prices are going up, right? Your wheat and rice prices are going up because of global shortage, right?
45% of your CPI basket is food. So I don't. It is a misnomer that inflation will go up just because rupee depreciates. But for wholesale, I mean, whatever they call it, that gets high. I mean, influenced with the hike in the crude prices, right? And while they have given some, I think with 10 rupees excise, cut in the excise, they have given it to the retail customer. But for the like for the industry and all, they have not still reduced the price. So I'm not sure by when this inflation is going to come down. But as long as inflation is high, I think that's not a good condition for the government, because that may like not help them in the upcoming elections as well. This Mehngai thing is going to hit them very hard. No, election and all is pointless to talk from now. It's in 2024. But basically, what the fact finder is trying to say is that depreciation in Indian rupee will not have much impact on the inflation. That's the point he is making, and I fully agree with him on that. लेकिन सर उस दिन आपने बोला था कि अगर रुपी 81 82 की तरफ भाग गया, then we will have a rally in the stock market. So I said about the stock market. I didn't say about the inflation. No, that's right. But then it will be very counter to our view, right? No, not at all. Okay. After a given point of time, if rupee depreciates, foreigners will not sell, and some of them would buy. So we'll have a bull run. It's very simple. That's right. Yeah. Thank you, sir. Thank you. हाँ सादिक भाई बोलिए. सर ये लास्ट वीकेंड पे एक्सिस बैंक के ऑफिसेज में रेड किया है ईडी ने, तो उसके बारे में कुछ पता करना था, बिकॉज ये अभी मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था ना, उसमें ये था कि स्टॉक मार्केट क्रैशेस जो होते हैं वो इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से कम है, और कोई बड़ा बैंक का फॉल डाउन या ऐसा होता है तब ये क्रैशेस मतलब होते ही होते हैं. तो कहीं एक्सिस बैंक हमको वही रास्ते में ले जा रहा है, हमको अभी कुछ पता नहीं है, ऐसे उस पे व्यू लेना था सर. नहीं, डूब जाएगा एक्सिस बैंक. सी बैंकिंग जो भी होता है ना, एक ही फंडामेंटल पे चलता है, ट्रस्ट. और ट्रस्ट के ऊपर बैंक चलता है. अभी जब ट्रस्ट टूट गया तो धीरे धीरे, आई एम नॉट सेइंग टुमारो इट्स गोइंग टू go down a lot, but slowly and steadily Axis Bank story is over. That is my submission. तो सर ये एक्सिस बैंक का तो मेजरली म्यूचुअल फंड का कुछ स्कैम दिख रहा है, और अगर म्यूचुअल फंड में मतलब जो हिसाब से रिटेल इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं हाउस होल्ड से, अगर म्यूचुअल फंड में लोगों ने हाथ रोक दिया तो फिर ये तो वन वे राइड हो जाएगा नीचे की तरफ. नहीं, उतना कोई स्कैर होने का जरूरत नहीं है. एक्सिस बैंक में हो सकता है, बाकी सब म्यूचुअल फंड में नहीं होएगा. वो जब भी उधर निकलेगा लफड़ा, वो तभी निकलेगा पैसा. अच्छा. और दूसरा बात है कि ये जो सेबी है, गवर्नमेंट है, ये ज्यादा कुछ लफड़ा निकला तो अपने को बताएगा नहीं, बिकॉज देयर वुड बी अ रन. हाँ. तो वो ज्यादा पब्लिक नॉलेज में नहीं आएगा. ये एक्सिस का तो आ गया था, करके आया. ये अभी दूसरा शायद आएगा नहीं. ओके, समझ गया सर. या सर और एक चीज पूछना था, ये फैक्ट फाइंडर सर से भी ये पूछना था कि अभी रिसेंटली मैंने एक एलन मस्क का एक इंटरव्यू देखा था. उसने बोला है कि 18 मंथ्स के लिए तो रेसेशन आना ही है, एंड ही यूज्ड अ वर्ड सच एज वो क्या इकोनॉमिक एनेमा, मतलब बुलशिट्स कंपनी पूरे बाहर होंगे, नो वन इज गोइंग टू, मतलब स्टूपिड फुल इडियट्स आर गेटिंग मनी, और उस तरह का बात मतलब एलन मस्क ने किया है. किसी बड़े स्टेज पे बात करा था, 4-5 वीसीज बैठे थे उनके साथ में. तो
ऐसा लगता है सर कि मेजर स्लो डाउन की तरफ जा रहा है। अगर यूएस गिरा तो पूरा दुनिया पे असर आता ही है, इंडिया तो कॉपी कैट है ही है, वो तो होता ही है। तो वो एक व्यू ले रहा था सर। Perfect finder. What is your question? Can you repeat it? नहीं, मैंने वो एलन मस्क का रिसेंटली अरे ट्वीट्स भी देखा बीच में। सादिक भाई, ये बहुत बड़ा सवाल है, काय को खाली टाइम पास करने का है अपने को। वो चलो ठीक है, कोई बात। रिसेशन ये वो छोड़ो नहीं यार, अपने को एक दो लॉट खेलने का, उधर काय को मगजमारी करने का। अपना कुछ इंडिया का इंफॉर्मेशन लो, वर्ल्ड ठीक है सर, नॉलेज ठीक है। लेके कोई फायदा नहीं है। मैं आपको दो सवाल पूछेगा, आपको आंसर नहीं दे पाओगे। हाँ, वो समझ गया मैं। हम्म। ठीक है। सर एक क्वेरी था, समर हियर। हाँ बोलो समझ भाई। सर एक चीज ये पूछना था कि टू फैक्ट फाइंडर कि इफ द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर हैज बीन स्टॉप्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो द प्राइसेस हैव बीन स्लेस्ड डाउन ऑन द डाउनवर्ड साइड, तो व्हाट वुड बी द जीएसटी इम्पैक्ट ऑन collections, on overall collections for the month? Will it go drastically or will it be stagnant as such? Because due to this what you say, inflation, the GST figures were on the higher side. So now the prices are going down. Yeah, but how important is INO to GST collections? I don't think it's that big a deal. So I don't think it's. I mean, the auto sector is really large in case of GST. The cement sector is very large. I don't think INO exports per se is a very large. No. And Not at all. yeah, so I don't It think is it's 8% as such of the overall exports. yeah. So in what Of is the exports? exports. Yeah, exports. Yes, sir. Exports is what percentage of our GDP, right? No. I will explain. Exports are around 30 billion every month. So if you take at 8% of that, it's $2.5 billion, which I suppose is not the correct figure, because आयरन और इतना एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। $2.5 billion every month. नहीं सर, ओवरऑल प्रोडक्ट जो बैन हुए ना उसकी बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, ओवरऑल हाँ, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा यार, वो तो और इंडिया में कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो बढ़ जाए, और क्या फर्क पड़ता है यार, जीएसटी बढ़ा नहीं बढ़ा, क्या फर्क पड़ता है बोलो। सर डेफिसिट विल गो ऑन द हायर साइड, इन्फ्लेशन तो बढ़ा ही है। यू आर वरिंग, गवर्नमेंट इज नॉट वरीड, इट इज प्रिंटिंग मनी। सर एक सवाल मैं बोलूं, ये बोल रहे हैं डेफिसिट बढ़ेगा तो फिर ये ऑयल का प्राइस सब लोग के लिए कम किया, एक्सपोर्ट कम किया, तो वो सब में डेफिसिट कम नहीं होगा? हार्दिक भाई जो क्लोजिंग प्राइस था फ्राइडे का, द होल 9 रुपीज विच द गवर्नमेंट हैज डिक्रीज्ड हैज ऑलरेडी बीन एंगल्ड इन द प्राइस राइज। अभी मंडे को अगर $121 ओपन हो गया ना तो ऑलरेडी वो। अरे सर क्रूड 150 के ऊपर जाएगा, आप लिख लो आज का तारीख में। मैं बोलता हूँ आपको, आई एग्री विथ यू। 145 इस महीने में होगा, इट इज फॉर श्योर। मैं आपको बोलता हूँ 150 रुपया, और 150 में भी गवर्नमेंट कुछ नहीं किया ना सर, तो 200 रुपया हो जाएगा। अरे सर जो हिसाब से आपने क्रूड का बैंड बजाया ना, अभी क्रूड उल्टा आपका बजाने को लगा है, और ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप क्रूड को जीरो में लेके गए थे, याद है लास्ट ईयर उसका कॉन्ट्रैक्ट जीरो माइनस में हुआ था। अरे सर ये सब गेम है, अपना लोगों का काम नहीं है। अपन अपना 5, 10, 25, 20, 25 लाख का पोर्टफोलियो पकड़ के रखो, नहीं लगता है 10% नीचे में बेच के पैसा एफडी में डाल दो, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। मेरा तो ये एडवाइस है, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यही करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ये अभी ऐसा लगता है कि ये अगर रिसेशन यूएस में बैठ गया, 100% इंडिया का बैंड बजेगा, 100%। अभी आप बोलो सर, अभी हशारत सर परसों बता रहे थे कि 16,000 के निफ्टी में 10,000 के शेयर के प्राइस है। सर अभी आप सोचो कि 16,000 का भाव में 10,000 का निफ्टी का प्राइस है,
14,000 निफ्टी हो गया तो क्या प्राइस होएगा आपका? और आपका मेरा सबका किसी का कैपेसिटी है कि 50 लाख का पोर्टफोलियो 20 लाख हो गया तो 30 लाख रुपए कमाने का एक साल में, जब भी रिसेशन बैठा है तभी। You सर are अभी making वारंट a नहीं नहीं you are सर, मैं नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करना चाह रहा हूँ। नहीं और मैं नहीं I'm रिटेल को सर मैं भी यही हूँ, मैं भी रिटेल ही हूँ, मेरा भी कोई पोर्टफोलियो बड़ा नहीं है। मैं भी इन्वेस्ट अभी ये कोरोना के टाइम में ज्यादा इन्वेस्ट किया है, वरना मैं भी मेरे धंधे में ही ध्यान देता हूँ। लेकिन ये तो इन डेप्थ है, हमारे पास टाइम है, उसके लिए डेप्थ में जाके पब्लिक को जो समझ रही है, मैं भी समझने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के जैसे बड़े आदमी लोग से। मैं इतने लोगों को सुना है लेकिन मेरे को किसका कन्विक्शन नहीं लगा। आप जो है ना सर, जो है वो सीधा मुंह पे बोलते हैं, उसके लिए मैं आज इतना बात कर रहा हूँ। मैं कभी इतना बात भी नहीं करता हूँ। आप जो बोलते हैं, मैं तीन तीन आपका ये सेशन देखा है और तीनों में मेरे को ऐसा लगा कि सर एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं सबको, लेकिन कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। और नहीं कोई बात नहीं पब्लिक को जब तक डराएंगे नहीं ना, उनको रियल नहीं फैक्ट अपने बताए, नहीं नहीं, रियल अपने को फैक्ट में नहीं बताए। डराने का है भाई अरे मेरा डराने का काम नहीं नहीं, मैं सर मैं भी डरा नहीं रहा हूँ, मैं हार्दिक रियल भाई, फैक्ट। हार्दिक भाई, हार्दिक भाई, शरद सर इज राइट। हाँ इफ वो डराएंगे ना तो भी जो खेलने वाले हैं ना वो तो कल निफ्टी नहीं लेके नहीं ही नहीं, जाएंगे, याद रखना। मैं मेरे को सब मालूम है सर, मेरा एज ज्यादा नहीं है, शरद सर का जितना एक्सपीरियंस है उतना मेरा एज है। मतलब आई एम जस्ट 45। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ सर कि पब्लिक को जब तक ग्राउंड लेवल पे आप लोग दिखाएंगे नहीं ना, रोजी पिक्चर दिखाएंगे ना, तो पब्लिक हवा में ही लटकती रहेगी। जमीन हार्दिक पे भाई, आओ। सबको पता है आटे दाल का भाव हार्दिक क्या है आज भाई के दिन में। हम्म, सर तो कोई फिर सुनने वाला नहीं है अपना एलन मनमानी ही मस्क, करे सर एलन मस्क का बात एलन मत मस्क करो है या एलन उसका बात। खाली इंडिया नहीं का नहीं बात करो नहीं नहीं, मैं नहीं बता रहा अभी हूँ दूसरा बात बोलता हूँ आपको अभी ये सर। बॉन्ड यील्ड जब ये 8% हो जावे ना हाँ अपना इंडिया का अभी 7.35 है तो आप डाल देना बॉन्ड फंड में 10 साल के लिए सही बात आठ है सर, टका मिलता रहेगा बराबर सर, 8 टका मिलता रहेगा, सब आपका बात सही है। लेकिन रिटेलर को मैंने अभी खाली एक ही एग्जांपल दिया कि अभी समझो कि कोई भी रिटेल है, ये कोरोना के टाइम में घर पे बैठ के उसने खुद का बचाया हुआ 10 लाख रुपया डाल दिया शेयर बाजार में कि भाई चलो 10 का 12 हो रहा है, 12 का 15 हो रहा है, अभी बना लो। ये अगर रिसेशन बैठ गया यूएस में तो सर मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उसका 10 भी नहीं बचेगा। हार्दिक Sir, लुकिंग भाई, एट द पास्ट हिस्ट्री। हार्दिक भाई, एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी। नहीं Hardik, दस नहीं का I, एक हो जाए तो on what basis are you saying, Hardik, that there's going to be a recession in the US? नो 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 नो, आई एम Let's नॉट सेइंग। no. फैक्ट You are फाइंडर saying. सर, Let's move फैक्ट on to the फाइंडर सर, topic, Hardik. You're repeating the सर same over and over no again. no 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 no, I am not repeating what I'm saying. Fact finder is my point of telling is that if you are saying that GDP to export is this, GST is this, sir, I'll tell you only one thing: when the product is costing you 70 rupees, you have to sell it at 75 rupees, not at the price of 120 rupees. Why government is not looking at that? फर्स्ट थिंग, फॉरमोस्ट थिंग। और जब भी 120 रुपीज का प्राइस 90 रुपीज होएगा तभी एनालिस्ट आएंगे और बोलेंगे कि अभी प्राइस कम हो रहा है। अरे भाई साहब, 70 रुपीज का 120 हुआ तभी किसी ने बोला नहीं प्राइस बढ़ गया है। 120 से 90 हो गया तो बोलता है अभी प्राइस कम हो रहा है, उसके लिए कंपनी कमा नहीं रही है। Sir, चलो analysts all said it, sir. The only problem is that what you're referring to is media, sir. Media will not say नो it. नो, आई नेवर सी टू मीडिया। मैं ये Sir, ब्लू चैनल अरे को then हार्दिक भाई जाने दो जाने दो अभिषेक जी, मैंने एक आपको डीएम किया है, उस आदमी को बुलाओ ना, इनवाइट करो ना, पांजल 1987। बेटा आपको कोस्ट बना देता हूँ। अब प्रांजल सर आएंगे, सबकी बजाएंगे। चलो अब काला साहब बोलो Fact Finder talked about the RBI balance sheet. Interestingly, there was another document published by RBI. Maybe it was a few months ago, but I just happened to see it. And I came across two very interesting data points in it. One is the gross investments in India, which is sum total of all the domestic plus international investments. That seems to have gone down in the past decade from 47% of GDP to now around 30% of GDP. So if our GDP was 100 and the investments in the country were 47, now it is 30. Now,
Another very interesting number is the incremental credit output ratio. They call it ICAR. Uh, that's hovering around 5 to 6. Now, how you need to interpret these two data points is look at the gross investments, which is right now, let's say 30, assume our GDP is 100, so the gross investment is 30. Now, if you divide 30 by the ICOR, which is between 6 and 5, you get a number which would be again 5 to 6. And that's your projected, that's your GDP. GDP growth rate for the country. So ICR acts is very similar to an ROI, but on the gross investments of the country. So if you look at the RBI data, it's projecting, at least based on the past historic data of gross investments and the incremental credit output ratio, that projects a GDP growth rate anything between 5 to 6%. So there are a lot of reports coming out. We'll be growing at 10, 11, 12, 9, 8. Uh, Unfortunately, RBI data doesn't seem to agree with what the analysts are saying. So, DJ, you're right about this. So the best way in my see, you can't. They changed the way GDP gets, calculated in India after the new government took over. Right, there was a change in the way GDP was calculated. So I mean, none of the stuff adds up, right? If you look at, auto volumes, you look at electricity, you look at any cement, you look at you look at bitumen. That is, for example, a lot of people say that road construction has been so large, but you know what, to build roads you also require bitumen, right? But the bitumen growth has not kept up with the road construction because they've changed the definition of how you know count road construction. So that's the problem. But I actually appreciate the point you made, because this is actually the right way to look at GDP growth. And another data which RBI discloses on a half yearly basis is the data called the gross flow of funds to the commercial sector, right? If you take that data and try and superimpose the GDP, at least from the non-government side, then you get a much lower picture of India's GDP number. As far as your data point on capex of 30%, yeah, see, India requires foreign capital because our savings rate is lower than our capex rate. So, unlike what the finance minister says that we don't need foreign investors to come in and buy, she is being totally idiotic because India runs a deficit of capital. We are a capital starved nation. So, for us to do capex, we require foreign capital. Because our savings rate is not enough to take care of capex. The last point, yeah. So, thanks a lot for highlighting this, DJ. I'm sorry if I interrupted you. Kara, you said 47% and 30%, right? yeah, it's been coming down over the past 10, 12 No, years. but So gradually but declining. the reverse might be true also. The GDP is increasing. Yes, GDP is increasing, and it makes sense, right? Once your base is growing higher, your percentage of investment. But what I was trying to do is list down these two, and then you divide these two to come at a I'm projected just making a GDP. point. Yes, your point is valid. Well taken. No, but Sharadji, when we look at GDP growth, we look at the new base, no? Yeah. Yeah, true. Absolutely true. Kara, anything else? No, that's all I have to share for today. Otherwise, And for markets. tomorrow your Bhavishya. सर FIIs covered their shorts. कल हमारा वो GDP का डेटा भी आने वाला है.
अच्छा. which is projected to be around 4 to 4.5% because of the higher base last year. Hmm. So we'll have to see how the market reacts to that. But just purely going by what the big institutions are doing, they actually were selling puts. So kind of tomorrow could be a bullish day unless they Okay. do something different during the day. So Yeah. I will just wait for FIIs to start reinitiating shorts. Otherwise, जो results के basis पे company का बेकार बेकार results आ रहा है, we can play those for shorting. Okay. Irfin, Hi Sharadji, hi everyone, good evening. good evening. What's your name? My name is Irfan. Okay. Since I've been listening to you all from pretty last 15-20 days and quite an interesting session और Yes. काफी knowledge वगैरह आ रही है. Thanks for that. Yeah. Suddenly I wanted to ask, I was listening to Mr. Hardik और मेरे portfolio में हाइकिल पड़ा हुआ है. तो इरफान जी उन्होंने आप डीएम कर दीजिए हार्दिक जी को. एनीवन हैज एनी केमिकल नहीं नहीं कंपनी नहीं नहीं, एक विच मिनट एक मिनट एक मिनट. एक छोटा सा सवाल है मेरा, कोई बड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं 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 है नहीं उसमें. नहीं नहीं, वो हार्दिक भाई ने बोल दिया वो चोर है. नहीं ठीक है, मेरा खाली मैं कॉस्ट बता देता हूँ. मुझे एग्जिट करना है, एवरेज नहीं करना नहीं है, निकल जाना है. नहीं कैन नहीं वो वी सर जी विल नॉट बी एबल टू टेल हाँ यू दैट आपको निकलना है नहीं निकलना है. इतना बता दिया वो चोर आदमी है. ठीक है, ठीक है. सर टेक योर ऑन कॉल, सबको बोलता हूँ. केमिकल सेक्टर में टेक योर ऑन कॉल. मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ करवाया है. मैंने आपको दिखाया है कि सामने आपको पोस्टर लगा के दिखाया है, लेकिन पीछे से पोस्टर फटा है. और मेरे को तो पीछे से भी मालूम है, आगे से भी मालूम है. आगे रणवीर सिंह का फोटो है, पीछे मुकरी है. अभी समझ लो आप इतने में. ठीक है, नो वरीज नो वरी, आई विल टेक माय ओन कॉल, नो वरीज. थैंक यू वेरी मच. या एंड इरफान एनीथिंग एल्स? दैट्स इट. हाइकिल पे ही सुनना था, बाकी आप लोगों के पास से काफी अच्छा नॉलेज आ रहा है. आई विल बी आस्किंग फ्यू अदर क्वेश्चन मे बी आफ्टर अ वीक और सो. या मुझे या कुछ दूसरा प्लीज. लॉन्ग इरफान टर्म भाई, इन्वेस्टमेंट. जी हाइकल का बोलो प्राइस इधर से ना 500 रुपया भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है. सब ऑपरेटर के हाथ में है. सर. बाकी मेरा टेक्निक 450 का कॉस्ट है, मेरा 700-800 का कॉस्ट नहीं है. नहीं नहीं इसके लिए सर, मैं आपको एक एक ये शरद जी ने आपको बताया ना, वैसा ही है. जी. सब अभी लोग, सबके पास केमिकल सेक्टर है. केमिकल सेक्टर है ना, सब में घुसा दिया है. चाइना प्लस वन, चाइना प्लस वन करके. जैसे जैसे आपको केतन पारेख ने 5 आइटम घुसाया था ना, सर वो पेंटेन इंडिया दीपक में, मैंने जीरो. दीपक नाइट्रेट में काफी लॉस करके अभी लास्ट मंथ में निकला हूँ. सो आई एम अवेयर शरद अबाउट सर, दिस थिंग. शरद इसके लिए सर देखो, पोर्टफोलियो साइज भी मैंने काफी कम कर दिया अपना. शरद सर मैं आपको बोलता हूँ, ये तेजी खत्म होने दो, जो होने वाली नहीं है अभी. लेकिन मैं बोलता हूँ 50% लोग बोलेंगे हम लोग ने केमिकल में नुकसान किया, तो कमाया कौन? खाली ऑपरेटर. ठीक है. Hello. ओके थैंक यू इरफान. थैंक यू शरद जी, थैंक यू वेरी मच. Hello. थैंक्स Uganda, हार्दिक जी. Uganda, what? Yeah, this is in Yeah, continuation of Fact Finder, what he told about diesel. And the GRMs have really gone up. If you look at Singapore GRM, it is yeah, about $22. And yes. there are some standalone companies like Chennai Petro, MRPL, who have really done exceptionally well. Now, coming back to this taxation, what whether we will follow the UK, that is a question mark. And Oil India chairman, in his interview, has clearly stated that he has not heard anything from the government. This could be a setup by the media and the operators to enter some stocks again. Because No, if you look at this is my no, no, reading, no, yeah. no. Don't assign everything to operators and all. No, I'm just saying that No, this the is the government word. is testing waters. Pardon? The government is testing the waters. Okay, they must be testing. You're right through the Yeah, media. yeah, Right, that's what they do. yeah. Yeah, I agree with you. So, if even if this comes to my knowledge, it's not going to affect because these refineries have made huge money, and maybe to some only just a little part could be taken away as tax. That is my take on this. Because if you look even at Chennai Petro, the amount of profit they'll be sitting on, and towards if you compare it with the market cap, there's a lot for it to move. If provided the GRMs continue to be good.
Yeah, that's all I would like to say. Thank you. No, you have qualified your statement. Provided. Yes, yes, I said provided because if you look at the graph, They the won't remain there. Chennai Petro 95 again, okay, 350, again 95. That is the range. okay, You play in that. okay, good, good, and So also yeah, tell me. no, this is the right time to sell. Okay, and there's been a huge increase of import of oil from Russia towards India. I think about 7 times the quantity has gone up in a quite a large extent. So we are 20 getting, times. yeah, 25 25 times, actually. and we are Yeah. getting it at a good discount, which would So definitely play out in our favor. Yeah, yeah. And also, Oh, a lot of yeah, these. we are the son-in-law of Russia, so Okay, they offer us discount. Nonsense it is. good, good. क्या सर Anyway, क्या बात करता है तुम? फैक्ट फाइंडर no, सर एक चीज पूछता हूँ. this is a fact that the oil import has gone up. It's not whether son-in-law or anything. No, These are no, no. figures. I'm talking about the discount part. Okay, I got you. Yeah. इधर कोई $1 नहीं छोड़ता है भाई, और वो रशिया है, वो किधर वो अपने को देगा कुछ मुफ्त में? Fine. I mean, what I'm saying is seeing the figures and the amount of oil which is coming into India from Russia has moved, and definitely there is a talk, and they have. Maybe government is yet not clarified at what price. Suppose if they clarify and suppose if they give discount also, क्या फर्क पड़ता है? No, we definitely it will help. The outflow of dollars. For example, I'll tell you today for export of tea, because I am from that region, and I do have a lot of friends into the exports to Russia. They are looking at a rupee ruble arrangement, and this will follow for many companies. Yeah, that's all I have to say. Thank you. Okay, thank you. सर बोलो और ये कोई? हाँ सर बोलो. आपने अभी बताया कि रशिया रूबल का जैसा है वैसा एक ईरान के साथ में भी अपन ने किया था केमिकल सेक्टर को इंपोर्ट करने के लिए. अभी बहुत सारा केमिकल ईरान से आ रहा है, जहाँ पे यूएसए का मोनोपोली था, जहाँ पे कोरिया का मोनोपोली था. मतलब ये वो जो कंट्री है, जब भी कोरिया ने वॉर करने के लिए चाइना के ऊपर नाटक किया था, वो टाइम में सबने इंडियन गवर्नमेंट हैज कम टू द पॉइंट दैट वी शुड ट्राई ईरान. वहां पे भी एक्सचेंज करवाया था. अभी कुछ एक्सचेंज का प्रॉब्लम आया है यहाँ पे, उसके लिए माल नहीं आ रहा है. विद इन 8 days वी आर गेटिंग द मटेरियल फ्रॉम ईरानी. तो मतलब मेरे को ये जानना है कि अभी ये जो बोल रहे हैं कि अपना ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल, तो सर बड़ा बड़ा कंपनीज का क्या, वो लोग का जीआरएम तो सबसे ज्यादा है. रिलायंस उसका सब रिजल्ट में सबसे हाईएस्ट जीआरएम दिखाते हैं. व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन इज स्टॉक प्राइस? अभी वो 95 रुपीज वाला 350 रुपया है, चेन्नई पेट्रो है, एमआरपीएल. आई डोंट ट्रैक दिस सेक्टर मच, लेकिन अभी रिलायंस का प्राइस तो फिर 5,000 10,000 होना चाहिए. तो व्हाई इट इज नॉट दैट वे? क्योंकि वो इंडेक्स में उसके लिए. मतलब सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है. ऑयल एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनी, अभी उन्होंने किसी ने अभी भाई बीच में बोला था कि भाई साहब, हाँ हाँ आप एक बात समझो. बी ग्रुप में जो शेयर होता है ना, उसका आप कुछ भी दाम बना सकता है, ए ग्रुप में नहीं बना सकता है. सही बात है. आई थिंक इट शुड आंसर योर क्वेश्चन. ओके सर. या या सर एक चीज बोलना था सर. यहाँ पर आप बोल रहे हो आरती सेल करना है, बट अगर यहाँ पर रिटेलर ने कुछ भी बेचा है तो जवाबदारी उनकी है. वो आपके पास या मेरे पास या अभिषेक जी के पास न आए कि अभी क्या करना है. बेचने के बाद अरे अगर तो बढ़ भी जाता है, क्या हो गया यार, छोड़ना, जाने दे उसको. काय को घबराता है यार अपने. आई एम सेइंग आई एम बेरिश. If you are bearish, you sell. If you are bullish, you buy. Don't listen to me. बस खत्म. और बेचे और अपने बोला और बेचा तो भी क्या हो गया,
लॉस हो गया तो क्या हो गया? एक बात बताओ, कौन आदमी प्रॉफिट करता है? बताओ। 91% traders are losers only. ओके, ये बोलते हैं 91%। हाँ, मैं बोलता हूँ ऑलमोस्ट 100%। Yes, तो yes, sir. छोड़ दो ना ये सब। ए फैक्ट फाइंडर वाज सेइंग समथिंग। No, I was just trying to answer Hardik's point about बोलिए sir. refining margins. See, you have to understand that the smaller refiners, I won't mention names, but you can understand. Yeah, Uh, Ceylon they- exploration, Hindustan oil exploration. चलो ना सर, मैं बोल देता हूँ, आप मत sir, करो sir, इतना. Hindustan Oil Exploration is not a refiner, sir. Sorry, I don't Okay, know. sorry. Then So, might be. Hardik, can you allow me to? Sorry. Yeah, sure. So, those refiners, they don't do hedging. So typically the largest refiners, they hedge their future product sales. So for example, if I refine crude and I plan to sell diesel, I will hedge the price of diesel, I got your point. right? So because of that, the spike in the spot market of refining comes with a lag. So that will explain why some companies showed very high refining margins and some did not. Now, to answer the other point I wanted to make, which Yogananda had come out, or somebody had mentioned about this, you know, uh, China plus one or China plus two. It's very interesting that last week Hyundai announced a $10.5 billion investment to manufacture cars in the US of A, not in India. The point I'm trying to make is, we think that China plus one means that they will manufacture in India. They don't need to. US is encouraging most companies to come and manufacture in the US itself. They don't care a damn about India. I mean, whoever keeps telling you that US is great for India, all nonsense. I look at actions, I don't look at words. I agree with you. I just say that India, if there is a recession in you, my question to the sir, आपने अगर फैक्ट फाइंडर से सुना रहेगा तो मैंने सर को यही पूछा, यूएस में रिसेशन आएगा तो क्या हम लोग बचेंगे? बस मैंने वही पूछा था. The recession, how do you define a recession? Please define it. How can I define, sir? No, you're using the word recession, no? No, sir, let's not discuss the point. You are more knowledgeable. No, I'm not. Nobody's knowledgeable, so we all learn. But you keep That asking is what. the same Sir, point about US recession. But you have to then define what a US recession is, sir, right? recession. Then You cannot buy. You cannot buy or you cannot buy the product with your pocket money. You have to take the loan and the buy. और जो जिसको बेचना है वो नहीं बेच पा रहा है. The sales what he wants, he is not able to get it. Recession का मतलब अभी आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा. मैं समझ सकता हूँ, लेकिन I cannot tell you. रिसेशन का मतलब क्या होएगा सर? आपका ग्रोथ नहीं होएगा, आपका कंट्री बढ़ेगा नहीं, आपको जो सेल्स चाहिए वो मिलेगा नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आएगा नहीं. उसका मतलब यही होएगा ना सर? क्या होएगा? इंडिया में रिसेशन था तो क्या था सर? आप समझाइए. अगर मैं रॉन्ग हूँ, यू कैन करेक्ट मी. you're wrong, sir. You're wrong. Yeah, please correct me. No, Please correct me, sir. wrong. We've had years of growth in India and the rest of the world, even when US has had a slowdown and recession. Okay, so I don't agree with you at all. No, each country. I'm not saying. No, each Sir, country. I'm asking you. So I'm saying that your question is irrelevant because you're not even defined what recession is. If you once you define what recession is, then we can ask a question. If you don't define the use of the word that you're using, then how can you answer a सर question? दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू ना कि सर रिसेशन अगर यूएस में जो ये जो आप बोल रहे हैं कि रिसेशन डिफाइन है, यूएस में रिसेशन आया तो भी हमारा कंट्री बढ़ेगा. सर हमारा कंट्री को बढ़ने का जरूरत है. अगर हमारा कंट्री नहीं बढ़ा आगे, समझो आप इंडिया को क्या बोलते हैं? अंडर डेवलप कंट्री. यूएस को क्या बोलते हैं? डेवलप कंट्री. डेवलप कंट्री को आगे डेवलपमेंट में है ही नहीं, वो ऊपर जाके बैठे हैं. आपको तो बढ़ना ही है आगे. Hardik ji, I would just like to object over here. You saying India is an underdeveloped company. No, Sir, sir, please take back your statement.
irrespective Nifty goes to 25,000 or Nifty Arey goes to sir, 5,000. first Sir, understand what I'm saying. please correct your Okay, okay, statement, sir. I correct my You statement. mentioned that India is underdeveloped. Sir, No, I no, strongly object such kind of statements. Please be very cautious on what you talk about India. नहीं Sir, we सर, all मैं are नहीं दे रहा market हूँ. traders over here. अरे सर, Sir, India के खिलाफ मैं नहीं ऐसा बोल मत रहा हूँ बोलिए ऐसा. सर. इंडिया के खिलाफ सर नहीं बोल रहा, आप प्लीज. नहीं समझ रहे हैं. लोग ऐसा सर बोलते हैं, मैं आपने नहीं ये बोल रहा हूँ. बोला कैसे कि इंडिया इज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री. बॉस, सर इंडिया मैं, इज अ डेवलप्ड लेट कंट्री. मी इंडिया फिनिश. इज इनटू डेवलपिंग. इंडिया हैज बीन डेवलपिंग, दैट इज डेवलपिंग व्हाट आई एम नेशन सेइंग. फॉर लास्ट. Now, please, no discussion on recession, no discussion on developed, underdeveloped. Sorry, but underdeveloped. I was not trying to say that. अरे I'm यार, sorry. I अरे take back my words. नहीं नहीं हार्दिक भाई, आप शांत रहिए. Okay, okay. मैं Sorry, क्या sir. बोल, और विशाल भाई, with you objecting to India being called underdeveloped, I also object. I agree with you, but almost all the publications call India as underdeveloped. I don't Sir, know. I was trying to point out that only. I am not saying underdeveloped. अरे You यार are हार्दिक भाई, आप overpowered. शांत रहो ना, आप Okay. शांत रहो ना. Okay, sir. Okay. तो विशाल भाई, अपने लोग बोलते इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री and the publications are saying it is under development. So we leave the discussion over here. बोलो विशाल भाई, क्यों शांत हो गए? नहीं नहीं सर, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर. इररिस्पेक्टिव अपन बाजार में मंदी करें, वी हैव अ नेगेटिव अरे व्यू ऑन बाजार इंडिया. का बात छोड़ो नहीं यार, सर मेरे को ऐसा कोई भी स्टेटमेंट देगा तो सर अपने को नहीं समझ में आता है. सॉरी अबाउट दैट, बट देन आई डिडंट लाइक दैट स्टेटमेंट, सो दैट्स व्हाई आई ऑब्जेक्ट. नहीं, बट करेक्ट मी, 135 करोड़ का आबादी है, उसमें से 22 करोड़ लोग काम के हैं, 6 या कुछ मालूम नहीं, वो कुछ फैक्ट फाइंडर बोलता था, आज 6 लाख रुपया कमाता है. तो आर वी डेवलप, नॉट डेवलप, अंडर डेवलप, व्हाट, और अ बेगर कंट्री? No, so by definition, India is considered developing country. There is developed, there is underdeveloped, and there is developing. So India is considered a developing country. I don't know on what basis we define it, but it's also true that India is also a very, very poor country. The government of India recently came out with a national health some survey where they spoke about how only 10% of the country earns above 20 rupees, which is actually a very small number, right? 25,000 rupees a month is nothing, right? And only 10% of the people earn that. So we are And you had tweeted something, no, on the indexes, various indexes, hunger index, peace index, and all that. that I simply just to irritate that guy, yaar. Yeah. So विशाल भाई, आप क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हो? आपका प्रॉब्लम क्या है? हाँ विशाल भाई, अरे ओ विशाल भाई, चले गए, नाराज हो गए क्या विशाल? अरे नहीं नहीं सर, वो सॉरी, वो माइक साइलेंट पे था सर, म्यूट पे था. हाँ, तो आपके हिसाब से ये डेवलप्ड कंट्री है और डेफिनेशन के हिसाब से डेवलपिंग कंट्री है? नहीं सर, अंडर डेवलप्ड. I am only saying that let's not make open statements. Let's go by the data. I think the fact finder is the perfect person in this spaces who has all the data available.
he reads lot of information and he हम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है, उनको सुन लेते हैं तो बहुत सारी चीज आ जाती है. So what I'm trying to say is what is the per capita income of average Indian individual vis-a-vis let's compare it vis-a-vis the developed nations and vis-a-vis the underdeveloped nations. That is it, sir. तो सर इस तरीके का ओपन और लूज स्टेटमेंट देना कोई भी देश के नहीं लिए, नहीं अपने देश के लिए मेरे को थोड़ा खराब लगा, इसके लिए आई ऑब्जेक्टेड. नहीं 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 अपना पर कैपिटा इनकम कितना है? $80 है. सर वो मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम है. आई थिंक फैक्ट फाइंडर विल फाइंड नहीं, $2100 है. 2100 सर, 2100. 2000 के आसपास. तो सर अपन मतलब अफ्रीका से, अफ्रीकन नेशन से तो बेटर है. वी आर बेटर देन मोस्ट हाँ ऑफ आवर नेबर्स. सो आई थिंक मेकिंग अ स्टेटमेंट लाइक दिस थोड़ा सा खराब लगता है सर. अपन देशभक्त है. नहीं नहीं, अरे देशभक्त वो पिछवाड़े में डालो. मैं बोलता हूँ अंधे देशों में काना राजा की वो कुछ ऐसा. ओके, एनीवे इट डजंट मेक अ एनी डिफरेंस वेदर आई से इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री अंडर डेवलप. क्या फर्क पड़ता है? आर थिंग इज गोइंग टू चेंज. और ये देशभक्ति है ना, देशभक्ति टैक्स भरो, वो तो दिखेगा. खाली बोलने से कुछ नहीं होता है. सामने से जाके पीएम रिलीफ फंड में डालो पैसा, उसको देशभक्ति बोलता है. तो अगर वो छोड़ देते ये टॉपिक. I agree with you, sir. If anybody says they are a patriot, they should pay their taxes and not avoid taxes. Absolutely. Yeah, absolutely agreed with fact finder and sir. No, and also another thing, fact finder, I have known and I still know people who regularly contribute to PM relief fund. Apart from income tax, they do contribute. And because I asked them, why do you do this? So they say, because we can't be in army, police, doctor or whatever services, we try to contribute like this. So that's the real spirit, यार. ये क्या भाषण दिया, ये किया और टैक्स का चोरी किया. Nonsense. Rubbish. Sir, but you know the problem with the PM relief fund, it does not come under the law. Yeah. It is. Otherwise, every account of the government of India is under RTI. The PM relief fund does not come under the RTI. It is not accountable to anybody. Yeah. No, I think PM relief fund is under RTI. No, sir. PM No, sir. care. AG office also does not audit their accounts. And whenever you do a investment in, donation in PM relief fund, the PAN card which we have to disclose under 80G, it will be XXXXXX. That no disclosure of the PAN card also of PM relief fund comes up, sir. Okay. सर तुम्हारो पीएम केयर फंड આવી ગયો તો पे. Sorry, I got confused. It's the PM Care Fund, not the PM Relief Fund. Yeah, that's what I was wondering. No, sir. PM Care Fund doesn't come under RTI. नहीं, PM Relief Fund में तो 80 something मिलता है benefit. सर उसमें मिलता है, उसमें 100% मिलता है. PM Care Fund के अंदर भी मिलता था, but it doesn't still come under RTI. It is not under RTI, so no one can question where the funds are, the mobilization of funds are happening. That is the only difference. But end of the day, we have to trust. I'll ask you one question. Ask those friends of yours, do they contribute to the PM Relief Fund or the Care Fund? No, relief fund. They are doing it since long time, maybe 30 years. ये PM केयर तो अभी आया. सर पीएम केयर फंड तो 2-3 साल पहले कोविड के टाइम पे आया था. बट इररिस्पेक्टिव, जब भी देश के अंदर कोई आपातकालीन स्थिति आई है, इमरजेंसी हैज कम इनटू द ऑन द कंट्री, इररिस्पेक्टिव वेदर इट इज उत्तराखंड फ्लड्स और लातूर उस्मानाबाद का अर्थक्वेक आया, पीएम रिलीफ फंड हैज ऑलवेज, और असम फ्लड्स और व्हाटएवर, तो पीएम रिलीफ फंड हैज ऑलवेज रिलीज फंड्स. नाउ द क्वेश्चन एंड
is and the debate is only around PM care funds. So वो कोविड के लिए contribution हुआ था, तो I think let's not get into that. I mean we should let's stick our focus to the markets. Let's not diverge from the topic. केतन सांगर ने लिया, बोलिए सर. Thank you, Sharad bhai and Abhishek bhai, to give me the opportunity to talk. मैं ये बोलना चाहूँगा करके कि मार्केट में बुल भी है, बेयर भी है, इसलिए कोई माल बेच रहा है, कोई ले रहा है. अभी अल्टीमेटली क्या है कि बुल को भी कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा और बेयर को भी कहीं ना कहीं है ना रुकना पड़ेगा. बुल को रुकना पड़ेगा कि और न ले, और बेयर को रुकना पड़ेगा और न बेचे. तो यहाँ पे है ना जो भी इन्वेस्टर है या ट्रेडर है उसको डेटा फैक्ट पे ही काम करना पड़ेगा. और जो भी तेजी हो या मंदी हो, तेजी जब बिग पॉकेट्स आ जाएंगे ना वापस, तो कोई टेक्निकल काम नहीं आएगा, कोई फंडामेंटल काम नहीं आएगा, कोई चीज काम नहीं आएगा. सबके भाव बढ़ेंगे. कचरा चीज भी है ना वो सोने के भाव में बिकेगा. बट जब मंदी आएगी, जैसा अभी पैसा निकल रहा है, तो जो निकल रहा है वापस कभी ना कभी तो आएगा. भले 1 साल बाद आवे कि 1 महीने बाद आवे कि 2 साल बाद आवे, कभी भी आवे, वो टाइम पे भी वही होने वाला है. तो मेरा कहना यही है करके कि किसी और के कंधे पे बंदूक रखने के बजाय खुद सीखो, खुद समझो. और जैसे सीनियर जूनियर केजी से लेके ग्रेजुएशन किया है, फी भरा है, स्कूल फी है, ट्यूशन फी है, भरा है, वही सब मार्केट को भी पैसा दो. पैसा लॉस होगा तो सीखने मिलेगा. सीखोगे तो वो गलती वापस रिपीट नहीं करोगे. और अगर वो गलती वापस रिपीट होती भी है तो उससे और सीख मिलेगी करके कि भाई मेरे को अभी नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करना है. 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, एक ही गलती बार बार नहीं हो सकता है. अगर बार बार करता है तो बॉस दिस मार्केट इज नॉट फॉर यू, माना. तो खाली इतना है करके कि आप खुद समझो आपको क्या करना है. इफ यू वांट टू बी ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, देखो आज सत्यम भी है ना, वो अगर मैनेजमेंट ही चोर निकलेगा ना तो सत्यम जैसा कंपनी भी डूब सकता है. तो वो तो रिलायंस. केतन भाई एक मिनट सर, कैन यू आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चंस, बिकॉज जो आपने बोला वो ऑलरेडी शरद सर ने बोल दिया है सर. ओके. बस मेरा कोई स्टॉक स्पेसिफिक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था. मैं बस खाली यही शेयर करना चाह रहा था करके कि किसी और के ऊपर डिपेंड न होते हुए खुद के ऊपर सोचो. अगर किसी के कहने पे अगर कोई स्टॉक ले भी लिया है तो प्लीज गो मार्केट में. सर आपका कोई क्वेश्चन है, बताइए. नहीं क्वेश्चन सर, शरद सर, ऐसा कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है. थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू. थैंक यू. थैंक यू. DGRS. Hello sir, how are you? Good. Tell me. So good evening everyone. Actually I just joined, so just wanted to give my general view on the markets. So my view right now is that there's no point in taking an extremely short-term view, because as you know the volatility is very high right now, and if people track the VIX index, it's been above 20 for the last 2 weeks. So at the moment I still feel that gap ups and gap downs will become very common. But if you zoom out a little bit, you all will realize that since October 2021, the global markets as well as India have been on a downward path, and the world in general is on a risk-off mood, and people don't want to put too much fresh money into risky assets. And see, at the end of the day, fundamentals can only drive a company's valuation. And if you see the recent results, they have been quite pathetic. And I feel next quarter will be even worse, because inflation will be much higher and crude prices are boiling. So the actual effect of inflation will only be seen next quarter. And then, sir, can I give some individual examples of stocks? Is that permitted? Yes. Okay. Yes, sir. Please. So just to give some, so I don't look much at the index, but if you look at the individual stocks, see, we have one company, Indigo, which is listed as Interglobe Aviation. It's currently trading at a market cap of around 70,000 crores, which is about $9 billion. And अगर आप last quarter का result देखें तो they posted a quarterly loss of 1,680 crore.
and for the year the net loss was about 6,000 crores. So I just want to know, like, why would anyone invest in such a company? Plus, this space is only going to get more crowded. अभी Jet Airways आ रहा है, Akasa Airlines आ रहा है, Air India is coming in, much bigger groups. So we've got to be careful. Plus, this theme-based investing that has started and this storification of ideas that has been done by fund managers. Yeah, ये theme में लगाओ, वो theme में लगाओ. All these themes became very popular in 2021, like China plus one, mid-cap IT, chemicals. जैसे कि मतलब सब चाइना का प्रोडक्शन इंडिया को ही आना है. So that's not going to happen. DGRS, what is China plus one and China plus two? Fact finder, if you know China plus one, China plus two, So basically, can you this elaborate? China plus one is basically this policy that because China was under lockdown and because the production was slowing down in China for many of these goods and services such as like chemicals, metals, etc. These fund managers basically said that all the production will shift to India. But ऐसा होना नहीं वाला. Like 100% is never going to shift. A part of it definitely will shift, but the full amount can never shift. And so if you see, I mean, a lot of these themes are going to die down. And as Sharat sir said on the last space, that ये सब bull market के घोड़े है. So in a bull market you can justify such valuations, but some companies like Nykaa, Dixon, Aarti, Deepak Nitrite and all, since we're talking about balance sheet and fundamental analysis, if you do a balance sheet analysis of any company, these 3-4 companies don't justify such valuation. And also one last point. So I mean, apart from these stocks, hello. वो तीन कंपनी नहीं है, बहुत सारा है, बहुत सारा है. Yes, sir. I mean, I have personally shorted these 3-4, but yeah, I mean, if you go down the list, there are at least 15-20 companies that you will find like this. No. And so, No. In A group, कम से कम 50 स्टॉक ऐसे हैं. And E group is not my first, so I will refrain from making it. बोलिए. Yeah, sir. So, and so one last point. So I'm seeing like a lot of people are getting pretty worried, and they're saying it's a bear market, bearish phase of the market. So I just wanted to make one last final concluding point that see, a bear market is never the end of the world. It's only the end of some heat that needs to be taken out of the market, which is very healthy for the long-term success of the market. So people should not be too negative, and companies that don't deserve a good valuation will go down definitely, but this will be definitely good for the long-term success of the market. And if you're dealing in risky things like futures and options, my suggestion would be right now position sizing is very important. And if you have like say a 1 crore capital, instead of deploying the entire 1 crore, maybe only trade with 50 lakhs and just be careful. And that's all. Like good luck to everyone for the coming week, and just stay happy. That's all. DGRS, should we short Indigo? Short which one? Indigo. Yeah, I mean, I am personally short on it because you see now the company, like it's 70,000 crore market cap. They made a 6,000 crore loss. तो आप मतलब खरीदोगे क्यों ऐसी स्टॉक में? Plus you see their main input cost is ATF, right? Aviation turbine fuel. So crude prices going up. One second. ATF will I go up, have right? another different view on this. Just give me a minute. I have a different view on this. So, Indigo का main business है ना, everyone thinks it is carrying passengers and going, but actually that's not the main business. What they make in their leasing business, right? Aircraft leasing, that is like much higher than what they make in flying passengers. So ये लोग क्या करते हैं? They just go and approach, let's say, Airbus and Boeing together, and then they take up the entire supply of the planes for the next 2 years, 3 years. जितने भी उनकी production line की capacity है, for the next 3 to 4 years, जितनी capacity everything has been taken by Indigo as of now, and these guys will sublease them later on to other different airlines. So this is their main business. And just check out the financials of this. I'll be able to speak some more on this on next week. I'll put some more insight into that.
No, so Abhishek, so you're saying at the current valuation, Indigo is good? I'm not saying it's good at current valuation, but I would just say refrain from shorting it as of now Hmm. because it's definitely an operated stock. Hmm. So that is what I want to say. Even if you really want to, then the size should be very minimal. Conservative. Hmm. Okay, thanks. Sharad sir, can I ask some question? Stock specific. बोलो बोलो हार्दिक भाई बोलो। सर ये अभी अभी ये सब बात हो रहा है उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। तो कोई लोग बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म रही है मार्केट में, शॉर्ट टर्म मत देखिए। तो सर मेरा खाली यही पूछना है, आईआरसीटीसी, बीएसई, सीडीएसएल, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए सर कि ये मतलब जो प्रीवियस वैल्यूएशन जो प्राइस आया था उनका वहां से नहीं 50% नहीं नीचे आ गए, नहीं, तो प्लीज यहाँ डोंट, पे प्लीज डोंट। नहीं मतलब क्योंकि यहाँ पे और लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ना या उसमें ना, से you should बेच you के should निकल not be जाना चाहिए doing सर? that. बेच के निकलो, you should not be averaging those stocks over here. क्योंकि ये सब जो CDSL VDSL था, that was just हाँ, going up based on the कि LIC, यूजर बेस बढ़ेगा बोले तो तुम्हारा ब्रोकरेज अकाउंट ज्यादा खुलेगा। वो तो भी बराबर ऑलरेडी है। कम होने वाला है, वैसे नहीं सस्टेनेबल लेकिन नहीं है वो अभिषेक ट्रेड। सर, अभी अभी ऐसा सर देखिए, ऐसा कॉन्ट्रा व्यू है, मैं पेपर में भी पढ़ रहा हूँ, बाहर नॉइज भी पढ़ रहा हूँ कि इतना बड़ा इंडिया है, शेयर बाजार को लोग बहुत तरीके से प्रमोट करते हैं। मोतीलाल जी बोलते हैं, मोतीलाल ओसवाल के बॉस, 1 लाख इंडेक्स हो जाएगा। तो इंडिया का 10% लोग ने भी इन्वेस्ट नहीं किया है अभी तक, तो और अकाउंट खुलेगा ना सर फ्यूचर में? लॉन्ग टर्म बैठ के लिए पूछ नहीं रहा हूँ नहीं, मैं। वैसी बात नहीं है। सी नहीं ऑल द नहीं नहीं ब्रोकरेजेस, नहीं, नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं, अभिषेक, बोलिए। एक मिनट। हाँ इंडिया में है ना, हाँ अब 15, इंडिया का आबादी 135 करोड़, बराबर। बराबर। आप बोलते हो कि इतना परसेंट आएगा, उसमें से 15 करोड़ रुपए, अरे 15 करोड़ आदमी के पास में अब पैसा है, बाकी सब भूखे नंगे हैं। तो 15 में से 10 करोड़ तो आ गया, अभी 5 करोड़ बाकी है, आप समझा? और मोतीलाल तो बोलेगा 1 लाख क्या, वो तो बोलेगा 10 लाख हो जाएगा। उसके बाप का क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है? तो सर लॉन्ग टर्म के लिए फिर क्या वही पुराना रखने का, टाटा अरे या पर मैं क्या बोलता हूँ, एचडीएफसी? 1 मिनट आप सुनो ना। सॉरी सर, दो सॉरी सर। 2 साल पहले 11,000 का इंडेक्स था। ये कोरोना है, आपके जैसा लोग आ गया, मान लाओ तो बढ़ गया। वो अभी आप अपना काम धंधे पे लग जाओगे तो वापस 10,000 हो जाएगा। नहीं नहीं सर, हम लोग तो काम धंधे में पहले भी लगे थे। आई एम इनटू मार्केट चेंज, केतन पारेख। लेकिन मेरा यहाँ पूछने का मतलब ये है कि पब्लिक सर को आप सब बहुत लोग बोलते हैं पर्सनली सब। ले लेता है यार। नहीं 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 आप मोटा बात समझो ना, आप मतलब ओके ये सर, जनरल। जनरल जनरल आपका नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं क्या बता रहा हूँ, अरे यहाँ पे विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग अरे ऐसा सर, बोल रहे मैं हैं क्या बोलता कि हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखिए। कुछ तो अभी मैं, मेरा इतना ही समझना है कि सेक्टर स्पेसिफिक है। 2000 के साल में आईटी चला, उसका बबल हो गया, अभी वापस आईटी का बबल हो रहा है। सर 4000 वाला। छोड़ो ना, जाने दो ना, क्या है क्या, ओके सर, छोड़ दो। क्या करने का है? मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे क्या सर, ऐसा पूछ अब रहा हूँ अभी ये। बेच दो, कल सुबह में F2 दबा दो। हाँ कुमार जी। Good evening, everybody. गुड इवनिंग। Good evening, Sharath sir. गुड इवनिंग। Bear markets do not end in this way in a V-shape rally. जो भी आप देख रहे हैं वो एक मार्केट का एक नया अंदाज है, एक नया रवैया है जो सीरीज के स्टार्टिंग में आपको दिखा रहा है। सब लोग लॉन्ग हो जाओ, 10-12 दिन के बाद फिर वापस देखेंगे वही अंधेरी रात, वही
सब वैसा ही चलते रहेगा. बेयर मार्केट्स डू नॉट एंड विद दिस टाइप ऑफ V-shaped recovery. It is very unfortunate to tell, but then there are people who suggest that we have ended bear market, we are into bull market. ये वो ठीक है, हर इंसान को अपनी राय होती है कहने की, लेकिन एक बात ये समझ के चलिए कि जहां पे वैल्यूएशंस मैच नहीं करते हैं, कितना भी अच्छी कंपनी हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ सब कंपनियां खराब है, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि सब कंपनी अच्छी है, लेकिन वो सब कंपनियों की वैल्यूएशंस देखिए, 70 पीई, 80 पीई. बाटा इतनी खराब रिजल्ट के बाद भी 80 पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? बाटा और ऊपर जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. Smart money always needs some entry points. If those entry points don't come, then how will the smart money enter? For that, market has to come down. Nobody, no smart person who has tons of money will enter into these valuations. It's as simple as that. आप कितना भी ऊपर लेके जाओ और 1000 पॉइंट निफ्टी को ऊपर लेके जाओ, विल स्मार्ट मनी कम? एक हफ्ता पहला भी नहीं आया स्मार्ट मनी, 1000 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी नहीं आएगा. उसको और 5000 पॉइंट निफ्टी नीचे चाहिए, 4000 पॉइंट 5000 पॉइंट निफ्टी चाहिए, तो वो पैसा लगाएगा. यहाँ पे फंसते हैं बेचारे सब स्मॉल इन्वेस्टर्स. प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, बेयर मार्केट्स डू नॉट एंड विद दिस टाइप ऑफ वी शेप रिकवरी. 2 दिन मार्केट को चलाया, लोग सब ये हो गए नहीं अभी बुल मार्केट है, बुल मार्केट है. अरे ऐसा नहीं होता है भाई लोग, ऐसा नहीं होता है. आई होप शरद सर कैन एक्सप्लेन दिस पॉइंट ऑन अ बेटर नोट. प्लीज शरद सर जी. नहीं आप बोलिए ना, आप बोलिए. नहीं, मेरा कहने का यही था कि 2 दिन मार्केट चला है तो सब लोग इतना बुलिश हो गए हैं. बुल मार्केट आ गया है, अभी 18,000 देखेंगे, अभी 20,000. हमको शर्म आती है कहने को पहला स्टॉप 18,000 होगा. अरे भाई ऐसा कैसा हो? आप है ना बहुत पॉल्टअप मत होइए. नहीं मैं नहीं होता हूँ सर. सुनिए. नेचर इज वेरी पावरफुल. Yes. Okay. And the market is like nature. It is nature. Right. The sixth nature. Right. So, I'm saying don't be put up or her fall. I am not put up, sir. ये लोग जो बेचारे इतने खुशी से झूम उठते हैं ना, हम लोग तो कठपुतलियां हैं. सर हम कठपुतलियां हैं मार्केट के हाथ. सर मैं क्या बोलता हूँ, वो जो झूम रहा है या रो रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. सही बात है. I am not worried about anybody. I am worried about myself and my friends. That's all. वो भाड़ में जाता है तो मैं धक्का मारेगा, मैं ऐसा आदमी है. ओके, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है किसी का. और दूसरा बात है कि कोई भी डायरेक्शन में मार्केट ऊपर या नीचे एक ही लिनियर फैशन में नहीं जाएगा, नहीं जा सकता है. इट हैज टू गो अप डाउन होना ही है. सो ये प्रोसेस है, इसमें जो फंसेंगे वो फंसेंगे. और अपना काम नहीं है फंसने वाला. आपको पूछने को नहीं आता है कि मैं फंसू या छूटने वाला, तो अपने को अपना देखना है, अपने दोस्त लोग का देखना है. और आप लेट से आए सर. हमारा टॉपिक था आरती इंडस्ट्री का बैलेंस शीट पे डिस्कशन था कि वेदर बर्बाद है, कंपनी बर्बाद है. अच्छा, कैसे बोल रहे हो सर? It doesn't need to be explained. It doesn't need. Look at their volume growth and look at their profit growth. very simple terms में बता रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी गए साल में 1000 करोड़ का नफा करती है, ये साल में 1200 करोड़ दिखाती है, तो what is the amount increase in profit due to increase in the sale price, not in increase in due to volume. Their volumes are not that good and it is only being managed. And look at the volumes.
मैं आपको एक शर्मनाक बात बताऊंगा कि पता नहीं सेबी और एनएससी ने कैसे इसको एफएनओ में डाला है. इट डजंट फिट, इट डजंट नीड टू बी इन एफएनओ आल्सो. यहाँ पे 100 शेयर बेचता है कैश मार्केट में एनएससी पे, तब जाके वहां पे एक लॉट देता है किसी को. इट इज बीइंग ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 90% ऑफ ओपन इंटरेस्ट इज बीइंग हैंडल्ड ओनली बाय 4 पीपल. वन ऑफ देम इज मॉर्गन स्टैनली. मैं आपको नाम भी बता देता हूँ आज. चलिए, वन ऑफ देम इज मॉर्गन स्टैनली. और उन्होंने 15 दिन पहले एक रिपोर्ट दिखाई है लोगों को और घुसाने के लिए. उन्होंने कहा है कि इट विल बिकम वन ऑफ द मल्टी बैगर्स, बेवकूफ बनाने के लिए. कौन सा मल्टी बैगर बनेगा मेरे को बताइए. आरती इंडस्ट्रीज ऑन व्हाट टर्म्स when there is no volume growth? बेगर बनेगा. बेगर BEGGAR. हाँ, there is no volume growth, there is degradation in volume. Volumes have reduced. They have only increased their sale price, जिसकी वजह से वो higher sale दिखाते हैं. Volumes have reduced. नहीं. उन्होंने 1400 करोड़ से इन्वेंट्री बढ़ा दी. सर सेल वॉल्यूम तो रिड्यूस हुआ ना सर. इन्वेंट्री में क्या होता है, तुम्हारे गोडाउन में माल सड़ रहा है. नहीं, लेकिन बिका क्या? लेकिन माल बिका क्या? वो फिगर इन्वेंट्री का उस सेल में आ जाता है ना भाई. सर क्लोजिंग स्टॉक में आता है, सेल में नहीं आता है. बैलेंस शीट जब बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, सेल का फिगर अलग आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का अलग आएगा. क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा के वो लोग अपना जीपी बढ़ाते हैं, वही जीपी नीचे कैरी फॉरवर्ड होता है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ता है. सेल कहां बढ़ा, वॉल्यूम कहां बढ़ा. आपने प्रोडक्शन किया, गोडाउन में पड़ा है. अरे माल बिकेगा तो पैसा आएगा ना. अरे प्रोडक्शन किया तो वो भी ट्रेडिंग किया है. नहीं, वो भी टर्नओवर में आएगा ना. स्टॉक है. हाँ, वो टर्नओवर में आएगा ना भाई. सर कहाँ आएगा प्रोडक्शन? क्लोजिंग स्टॉक है, गोडाउन में पड़ा है. हाँ तो नहीं, ये उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को बेच दिया ना, तो वो सेल्स में आ जाएगा कंपनी का. सर बेचा नहीं है ना, क्लोजिंग स्टॉक में दिखा है. इन्वेंट्रीज आर गॉन अप. आप समझो बात को. इन्वेंट्रीज मतलब तुम्हारे गोडाउन में माल पड़ा है. एसेट में आएगा, लायबिलिटी नहीं आएगा. एसेट में आएगा, लेकिन सेल में कहाँ आएगा. एसेट में तो मेरे डेटर भी आते हैं जो माल पैसा खा जाते हैं. फिर क्या? ओके. और डेटर 1400 करोड़ से बढ़ गया. हाँ, ये बोगस एंट्रीज है, ओनली इन मार्केट टू इन्फ्लेट द टर्नओवर. वो आप भी जानते हैं सर, केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है. 50 बिल फाड़ दिए, क्रेडिट आउटस्टैंडिंग दिखा दिया, अगले साल में सेल रिटर्न दिखाएंगे या दिखाएंगे पैसा खा गया डेटर. शरद सर, हाँ बोलिए. ये मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, केमिकल इंडस्ट्री का यही है सब. ये कुछ नहीं होने वाला है. इसका डिस्कशन करेंगे, पूरा रात निकल जाएगा सर. और ये सर जो बोल रहे हैं ना अभी, वो परफेक्ट बोल रहे हैं सब. मिस्टर वो डायमंड, सब कुछ परफेक्ट बोल रहे हैं. मिस्टर डायमंड बोलिए. Good evening, Uncle. How are you? Fine. Karan this side. Fine. My question is related to the sin businesses and sin industries. So, basically, alcohol हो गया या tobacco हो गया. So, what do you feel about them? Good. That is where my major portfolio I'm planning to make an entering right now. Not right now, I mean slowly accumulation चल रहा है time पे. So I have quite a lot of holding in Godfrey Phillips. नहीं, Godfrey is not good. Godfrey is not good. No. You buy ITC. Okay. You buy ITC. Okay. Okay. Thank you. Okay. और परवेश भाई बोलो. हाँ जी शरद जी, मैं आपका भी देख रहा था कि बैलेंस शीट के ऊपर बात चल रही थी आरती इंडस्ट्री की, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि प्रोडक्शन एक्चुअल में हुआ तब ना, जो स्टॉक दिखा रहा है, इन्वेंट्री दिखा रहा है. तो सर हम ना काफी इन डेप्थ चले जाते हैं. उसका एक तरीका ये भी रहता है कि जो किसी कंपनी ने अपना स्टॉक इन हैंड दिखाया है, क्लोजिंग स्टॉक, तो इन प्रोपोर्शन टू लास्ट ईयर उसका जो उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट था या उसका जो वेजेस था,
जीपी से पहले, तो वो भी उस प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? और ऐसी हमने बहुत सारी बैलेंस शीट का चीर फाड़ किया है, ठीक है, और उनके जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं, किनको सेल किया, किन से परचेज किया, क्यों इतने क्रेडिटर्स डेटर्स खड़े हुए हैं, रिसीवेबल्स क्यों इतने खड़े हुए हैं, तो उसके लिए इन डेप्थ जाना बड़ा जरूरी है। और आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट एंड मोर, क्योंकि ये जो समुंदर है और इसमें वही जीतेगा जो बैलेंस शीट को फाड़ देगा उसके इन डेप्थ जाके। बाकी एक चीज आप और भी बोल रहे थे कि 8% में बॉन्ड यील्ड में पैसा लगाना चाहिए। सर आपके लेवल पे ठीक है कि आप 100-200 करोड़ का पोर्टफोलियो लेके बैठे होंगे, बट ये जो नए नए बंदे आए हैं इनको तो 8% हर महीने चाहिए, तो ये कहाँ से इनका सब हो पाएगा सर? और ये अपने आप भाग जाएंगे सारे छोड़ छाड़ के, जब बियर मार्केट आएगी तो सब भाग जाएंगे अपने आप, उस टाइम कोई लेने वाला नहीं होगा। और तीसरी चीज सर, एक चीज और है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे हम लोग मैं अभी तो मैं अराउंड 50 इयर्स का हो गया हूँ, तो आप काफी टाइम से शेयर यही समझ लो सर। तो सर उसमें ना हमने मार्केट में, मैंने जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था मेरा स्टेट बैंक का, जब आईपीओ आया था और तब हमने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो उसके बाद लॉस वॉस हुआ, अर्चद मेहता वगैरह सब वो देखा, सब प्राइम देखा, सब कुछ देखा, और अल्टीमेटली फिर जो अपना सर्कल था वो इस मार्केट से हमें एक चीज ये सीखने को मिली, दिल बहुत बड़ा हो गया, घाटा खाया, दिल बहुत बड़ा हो गया। फिर देखना चालू किया कि जो लोगों ने पैसा बनाया है लाइफ में वो किन लोगों ने बनाया है। तो मुझे तो कोई दिखा नहीं कि शेयर मार्केट से कोई बहुत इक्का दुक्का कोई एक्सेप्शन होगी जिसने पैसा बनाया। तो हमने तो ये देखा जी कि जिन लोगों ने रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उन लोगों ने पैसा बनाया। तो जैसे 10 साल का किसी का होराइजन है, तो जो लोग सुन रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना ये बोलूंगा कि 10 साल का अगर आपका विजन है, तो आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस भी गांव में, कस्बे में, कहीं भी रहते हैं, आपके जो सिटी लिमिट के विद इन 10 किलोमीटर्स कुछ भी आपको लैंड, प्रॉपर्टी, डोंट बाय फ्लैट्स, कुछ भी नहीं लेना है। अपने आसपास आउटस्कर्ट्स में कुछ भी जमीन का टुकड़ा लेके रख लो, और आपको बहुत अच्छी ढंग काय को मगजमारी करना, बैलेंस शीट पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, कुछ भी जरूरत नहीं है, और इसमें नुकसान ही होना, कुछ नहीं होने वाला। सर मेरा तो बस इतना लिमिटेड सा पॉइंट है, बाकी एक मिनट रोकिए, एक मिनट। जी जी जी, ये बैलेंस शीट के बारे में आपको कुछ बता सकेंगे? बैलेंस शीट में भी सर हम वो देखते हैं कि जैसे मान लो, देखो बहुत बड़ी कंपनीज में मैनिपुलेशन हो सकती हैं, की जाती हैं, होती भी हैं, सब कुछ होता है। ये कुछ ऐसी 100, 200, 500 करोड़ वाली कंपनीज हैं कि जिनके अंदर नहीं उसकी बात नहीं है, बड़ी कंपनी। हाँ, तो बैलेंस शीट का सर उसका चीर फाड़ कर, मैं आरती का चीर फाड़ करके दे दूंगा, डीएम कर दूंगा आपको कि क्या करना है इसका। हाँ जी, इसका प्रॉपर हम इसका ऑपरेशन कर देंगे, आपको बता देंगे कि इसके अंदर ये जो क्या किया उन्होंने मैनिपुलेशन, वो सब आ जाएगी सब सामने, कुछ समझ में आवे तो। हाँ, आई विल डीएम यू, नो इशू। ओके, थैंक यू। राइट सर। कमल भाई बोलिए। कमल भाई, अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज स्पीक। कमल भाई। धवल शाह। हाँ शरद भाई, एक क्वेश्चन था, वो मैकडोवेल्स का जो रिजल्ट आया ना, वो कैसा लग रहा है? कभी आया? मैकडोवेल्स का जो यूनाइटेड स्पिरिट्स का फ्राइडे को था। नहीं, मैं देखा नहीं है बॉस। आप उन्होंने कुछ 32 ब्रांड सेल किया है, हाँ। और फ्रेंचाइजीज का लेके 2100 करोड़ का उनको कैश आया है, कुछ ऐसा कुछ है। हाँ। नहीं देखो, वो रिजल्ट कुछ भी आवे, वो कंपनी अच्छा है एंड इट विल डू वेरी इन फ्यूचर। वो पकड़ ओके, सो वी कैन बाय राइट फॉर लॉन्ग टर्म? या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ले उसको, बेचना ओके, थैंक यू, बेचना मत। थैंक यू, श्योर, थैंक यू। And I'm listening your this sessions and all, and this is very good learning. Even it's a bear or bull, it's a different story, but I'm learning a lot from this. Because the times are bearish. Yeah, right. When the bullish time will come, I will be the first. Yes. To shout bull. Yeah. Okay. Definitely. Thank you. Thanks a lot. Kamal bhai, unmute yourself.
नहीं है। और वो कोई है भाई? हाँ सर, ऐड कर रहा हूँ। ये सिंपल ट्रेंड आ गया है। हाँ बोलो भाई। सर ये सिंपल ट्रेंड। अदानी ग्रीन क्या बनाता है सर, इतना हाई पी पे चलता है? अच्छा, बनाया आपको क्या तकलीफ है? नहीं तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लिक्विडिटी लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन डर भी लगता है इतना। इन्वेस्टमेंट मत करो और देखो मत उसको। डोंट लुक एट इट। देखो, आपको रास्ते में चलते हुए बहुत सारा आदमी दिखेगा और औरतें दिखेंगी। इसका मतलब नहीं है कि आप सबको देखो। आप अपना काम करो, अडानी को गोली मारो। अच्छा ठीक है सर। आर यू होल्डिंग एनी शेयर्स? अब अदानी पावर का तो था मेरे पास, अभी भी है। हेलो। हाँ बोलो तो। वो कोई स्टॉप लॉस रख लेना भाई। हाँ उसका बाइंग तो 99 तक है मेरा। नहीं नहीं भाई, तू बता मत। वो प्रॉफिट में हिस्सा देने वाला है तो सुनता हूँ तेरी बात से। आई एम सेइंग कीप अ स्टॉप लॉस इन माइंड एंड बी आउट ऑफ इट व्हेनेवर नहीं इट। सर, उसमें स्टॉप लॉस तो वो सर्किट में ऊपर और सर्किट में नीचे आने लगता है, तो उसमें स्टॉप लॉस कैसे काम करेगा सर? अरे दूसरे दिन। अच्छा ओके। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बोलिए। सुधीर है, सुधीर। सर गुड इवनिंग सर टू ऑल ऑफ यू। सर शरद सर ने 10 दिन पहले कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दिया था। वो स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स अब वापस बढ़ने स्टार्ट हो गए। उनको दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं सर, या स्टेटस क्या है सर उनको? नहीं नहीं अभी याद नहीं है। अभी रुक जाओ, और अगले स्पेस में बताएगा तू। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो कमल भाई। अरे भाई कुछ नहीं, मैंने तो आपका कन्वर्सेशन सुना नहीं, अभी जस्ट एक मूवी देख के आ रहा हूँ, टॉप गन। बढ़िया मूवी है। हाँ मैंने भी देखा। अच्छा देखा ना, अच्छा मूवी है, अच्छा एक्शन पैक्ड मूवी है। कुछ नहीं सर, ऐसा है कि आई फील दैट 3 जून को एक प्लानिटरी चेंज हो रहा है, देन 23 को भी हो रहा है, विच विल गिव बिग पेन टू बियर्स। ऑन 12th of July, बट मीनवाइल अभी तो लग रहा है कि जून में थोड़ा टेस्टिंग टाइम रहेगा बियर्स के लिए और मंदी के लिए रहेगा। मेरे ख्याल से ये लोग ठोका है तो तो अपने थोड़ा ऊपर लॉन्ग भी ले चलते जाएंगे। हैं, तो अपने लॉन्ग चलते हैं, अपना क्या जाता है। नहीं, बात वो लॉन्ग नहीं, बात शॉर्ट और लॉन्ग का नहीं है, बात है कि बस समझ के लेने का। मतलब वो जो सोच रहे थे ना कि एकदम से बहुत बेरिश सेंटीमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो लग रहा है 3rd के बाद थोड़ा सा सेंटीमेंट पता नहीं, बट लग रहा है मार्केट टेस्ट करेगा अपने को फॉर श्योर। बस बाकी और कुछ नहीं है सर। ओके थैंक यू। निफ्टी ट्रेडर बोलो। शरद सर, मेरा आपसे एक सवाल था। जैसे सर आप हमेशा बोलते हैं ये मशीन है स्टॉक मार्केट, उसको हाथ नहीं लगाने का, बार बार उसको छेड़ने का नहीं। और सर आप दूसरा ये भी बोलते हैं कि नियरली 100% तो सब ट्रेडर अपने हम लोग लॉस में ही है। मुझे ये पूछना था सर, अभी अभी हम लोग तो बहुत पैसा लेके हम लोग अभी कैश में बैठे हैं, अभी पैसा कैसा कमाए हम लोग? अभी कुछ कैसे कमाए? अभी तो हम लोगों ने बेयर मार्केट करके सब कैश ऊपर ही निकाल के हम लोग कैश लेके बैठे, पर अभी वो पैसे का इन्वेस्ट करके पैसा कैसा कमाए? अभी हम लोग एक का दो होना चाहिए ना, अभी पैसा कैसा कमाए हम लोग? क्या एक का दो होना चाहिए? नहीं, एक का दो मतलब पैसा कैसा बढ़ा है? अभी हम लोग अभी सब कैश लेके बैठे, हम लोग सब होल्ड करके रुके हैं। अभी हम लोग क्या करें? पैसा कैसा बनाए? अभी जैसे ट्रेडिंग में तो लॉस होगा, ओके, ये मशीन को हाथ नहीं लगाना है,
कुछ करना नहीं है, तो अभी कैसा करें? वो पैसे का हम लोग अभी कैसे इन्वेस्ट करें? आगे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कुछ नहीं, बॉन्ड फंड में लगाओ, 8% मिलेगा। अच्छा, कितना दिन तक रुकना चाहिए सर? और यार मैं ज्योतिष नहीं है, मेरे को लगता है हाँ, अभी टाइम है, 3-4 महीना और है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा, थैंक यू। थैंक यू, ओके, थैंक यू। आपके हिसाब से हम लोगों ने, इसलिए मैंने तो अभी पैसा लॉन्ग में सब कैश में होल्ड करके रखा है, कुछ ऐसा भी होगा नहीं है, तो लूंगा अरे नहीं। ऐसा नहीं है यार, बहुत सारा स्क्रिप्ट है, ऊपर भी जाएगा और बहुत सारा स्क्रिप्ट है वो नीचे भी जाएगा। तो अगर अच्छा, आपने वो आपको आता है क्या लेने का क्या बेचने का, तो आप ले सकते हो। हाँ, मैं तो सिर्फ सर निफ्टी में सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ और अरे सिर्फ बाप रे इन्फोसिस बाप जमा बाप करता हूँ बाप बस। बाप 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 बाप, तू म्यूट हो जा भाई, निफ्टी वाला, निफ्टी ट्रेडर, खतरनाक आदमी है तू तो। ओ बाप रे बाप, निफ्टी ट्रेडर मत करो निफ्टी में। हाँ सर, हाँ, हाँ, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू। हर्षित चावला। ये हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे HDFC AMC में आइडिया चाहिए था, एक्चुअली आई हैव स्टक। स्टॉक मीनिंग? मतलब मैंने, मेरा कैश में पोजीशन है तो 2500 के लेवल से। ओ बाप रे, अच्छा भाव है तो निकल जाना भाई। ओके, क्योंकि सर अभी एक MSCI का चीज अभी अभी हर्षित कुछ भाई, आया, एक मैसेज आया MSCI हर्षित का। भाई, हर्षित भाई, एक मिनट यस एक मिनट। यस। आफ्टर द इश्यू ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड, सेबी ने सभी पूरे इंडस्ट्री को स्कैनर पे डाल दिया है, एंड दे आर डूइंग स्कैनिंग ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड्स इंटरनल डीलिंग्स। तो अभी राइट कैन ऑफ फॉर्म्स चालू हो गए हैं। एनी टाइम एनी म्यूचुअल फंड AMC विल कम अंडर अटैक लाइक एक्सिस विच वाज देयर फ्रॉम जनवरी, बट अभी वो रहेगा नहीं ऐसे दबा के। वो जो एक्सिस म्यूचुअल फंड जब दबा के बैठा था वो रहेगा नहीं, एंड एनी टाइम दिस विल कम। अभी वो हिसाब से 3000 का भाव 1700 हो गया, ऐसा नहीं है। HDFC AMC में HDFC एज ए होल ये सब निकाल रहे थे अभी FIIs। तो HDFC AMC बीइंग ए ग्रुप फॉर्म ऑफ HDFC, ये हो रहा था। तो अभी उसके सोने पे सुहागा बेयर्स के लिए ये होगा कि ये कोई न्यूज आए आइटम जिसमें HDFC AMC का भी कोई हाथ हो या कोई भी AMC का हाथ हो, तो यू जस्ट हैव टू बी कॉशियस। अगर बढ़ता है भाव तो शरद सर ने बोला निकल जाना, बट राइट राइट लॉन्ग राइट। टर्म का सोचना मत। गॉट इट नहीं गॉट नहीं इट गॉट नहीं, इट। नहीं नहीं, और आप क्या बोल रहे थे? मॉर्गन स्टैनली MSCI रीबैलेंसिंग? MSCI का दे आर डिलीटिंग द फंड ऑन दिस 31st। ओके ओके यस, दे आर एग्जिटिंग द होल पोजीशन। ओके, तो बिकवाली आएगा। वही एनीवे, है। ऊपर आएगा तो बेच देना भाई। ओके ओके सर, थैंक यू। हसमुख भाई सोलंकी की क्या है? हसमुख भाई, अनम्यूट योरसेल्फ हसमुख भाई। दीपेश भाई शाह। Samarth bhai, speak something on this mutual fund issue. हाँ यस जी प्लीज। सर, एक आप सब म्यूचुअल फंड्स की अगर होल्डिंग एक एक्सेल शीट पे लगाएंगे हॉरिजॉन्टल में, तो there will be 70% of stocks which will be common in each and every mutual fund. अगर टॉप 50 के निफ्टी 50 के स्टॉक में नहीं है तो मिड कैप में ले लेंगे, मिड कैप में नहीं है तो मल्टी कैप में ले लेंगे। अल्टीमेटली यू विल फाइंड 80% ऑफ द स्टॉक्स आर कॉमन। अब उसमें ये होता है, वेरी फ्रैंकली, because I was once upon a time involved in declaring preparation of NAVs of mutual funds through Deutsche Bank. So whenever there is a pressure on some mutual fund, redemption pressure, तो वो जो अपनी होल्डिंग बेचेगा तो दूसरे म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। आप समझिए बात को।
सपोज एग्जांपल देता हूँ, आज कोटक बैंक को विड्रॉल रिडेम्पशन कुमार आया भाई एक मिनट, एक इसके ऊपर एक चीज पूछना था कि हाँ। जो 2 एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को सेक किया है अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड ने, राइट दे वर डीलिंग इन 3-4 इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, आरती या कौन सा था, पता नहीं नाम मेरे को शेयर्स का, तो टोरेंट भी है। हाँ टोरेंट है। अभी चीज ये है कि अदर म्यूचुअल फंड्स कंपनीज वुड आल्सो हैव बॉट टोरेंट एट दैट टाइम, राइट बराबर है, अभी यही बात वो बता भी रहा हूँ स्कैनर में आपको आएगा सर। ना। नहीं, अभी आपको यही बात बता रहा हूँ, एक म्यूचुअल फंड ने अपना वो टाइम पे डिस्कवरी किया, ये किया कि भाई इट विल बिकम अ मल्टी बैगर, तो वो बेचारे ने तो 700 रुपए में लिया, 1000 रुपया हुआ तो दूसरे ने लिया, 1200 हुआ तो तीसरे ने लिया, 1500 हुआ तो चौथे ने लिया। अब जब एक्सेस को प्रेशर आया है, टोरेंट बेचेगा तो वो साला 700 वाला भी खड़ा हो जाएगा लेने को। This is the reason SEBI has come ahead and said, let us go for audit of all the mutual funds. Why they are helping other mutual funds to reduce their stake, and these people are increasing their stake in the same company when they already hold it. आप समझो बात को। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जो 2 आदमी ने 200 करोड़ रुपया कमाया फ्रंट रनिंग करके, उसी टाइम पर इफ एनी अदर एएमसी वुड हैव बॉट दैट स्टॉक, तो सेबी का भी उसमें आएगा ना इंक्वायरी। सर वो तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अभी आप नहीं समझते, पहले से ही सब म्यूचुअल फंड को पता होता है कि हम ये आदमी आज ये म्यूचुअल फंड ये स्क्रिप्ट ले रहा है, तो प्रेशर ऑन दैट स्क्रिप्ट फॉर परचेज इज फ्रॉम ऑल द फंड्स, खाली ये एक्सेस का नहीं होगा, आपको ये भी बता रहा हूँ, ये सब मिले हुए हैं इंडस्ट्री, यानी सबकी वाट लगेगी इन शॉर्ट। हाँ। तो शाम को एनएवी कैसा डिक्लेयर करेंगे, अगर खाली एक ही म्यूचुअल फंड टोरेंट लेगा, टोरेंट ऊपर गया 20% तो खाली उसका एनएवी बढ़ेगा, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो वो लोग भी बोलते हैं हमको भी, चलो जो दिन तुम लेता है हमको पहला बता दो, चलो वी विल बाय इन क्वांटिटी, एवरीबॉडी विल बाय। 5 लाख शेयर का क्वांटिटी अगर उठाते हैं तो 5-5 लाख या 50 लाख उठाते हैं तो सब लोग 5-5 लाख उठा लेंगे शेयर, उसमें फ्रंट रनिंग हुआ है। ये सब गेम है सर, एवरीबॉडी इज कनेक्टेड इन म्यूचुअल फंड। अभी मूवी बाकी है इन शॉर्ट। हाँ, अभी तो पिक्चर चालू हुई है सर, जस्ट अभी तो ट्रेलर चालू हुआ है, टाइटल्स आए हैं। कुमार सर एक क्वेश्चन है मेरे को। हाँ। मान लो ये म्यूचुअल फंड्स का इतना बड़ा वो निकल रहा है, ऑडिट निकल रहा है, एवरीथिंग इज कमिंग आउट, इज इट नॉट दैट कि जनरल पब्लिक का सिप भी कम हो जाएगा, वो बोलेंगे अभी नहीं करते जब लेट द एयर गेट क्लीन। नहीं कमल भाई वो नहीं आएगा, the data shows मार्च में, अप्रैल में, मई में SIPs have reduced. नहीं कुमार भाई, SIPs have not reduced. ना. SIPs have in fact increased. 11,000 was the last month figure. उसके पहले 10,000 करोड़ थी। रिडेम्पशन तो बढ़ गया ना सर सामने, आप समझो बात को। पीपुल आपको 5,000 का SIP करने का है, लेकिन आपका जो फंड पड़ा है उसमें से आपने रिडेम्पशन कर लिया, रिडेम्पशन have increased. सर मैं क्या बोलता हूँ, देयर इज नेट आउटफ्लो सर, आप देखिए नेट आउटफ्लो है। ये जो टीवी पे डेटा दिखाते हैं SIP इंक्रीज, लेकिन उनको पूछो रिडेम्पशन प्रेशर कितना है, व्हाट इज द नेट पोजीशन। कुमार भाई हेलो। हाँ सर, ये टॉपिक अपने चेंज करो। ओके सर। हसमुख भाई कुछ बोलना है आपको? दीपेश भाई, अभिषेक who is on the line now? हेलो समद भाई, योगेश करके है। हेलो हाँ बोलिए। हाजी बोलिए। समद भाई હું છે ને આપણે मैं बहुत दिन से स्पेस में ज्वाइन हो रहा हूँ, और मेरा क्वेश्चन समद भाई से है। अगर समद भाई हो सके तो मेरे को हेरम्बा पे व्यू चाहिए सर। हेरम्बा केमिकल्स? हाँ, वापी में केमिकल का कंपनी है। हार्दिक भाई सर केमिकल सेक्टर का, कोई भी सेक्टर का इंडिविजुअल स्टॉक का मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन कोई भी केमिकल सेक्टर का प्राइस ओवर वैल्यूड मेरे को लग रहा है।
बाकी आप लोग अपना हिसाब से रिसर्च कीजिए। मेरे को 50 डीएम आ गया है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैं सब लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, सर ये मेरा व्यू है, आई मे बी बायस्ड, आई मे बी रॉन्ग। हेरनबा केमिकल एक जमाने में 50,000 रुपए का पेमेंट नहीं कर सकता था। ओके आप केमिकल मार्केट में किसी को पूछेंगे तो अभी आप, मैंने उसको माल सप्लाई किया है 2000 में, 2000 का साल में 50,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग था। हाइकल केमिकल का अभी तक का मेरा 2015 का पैसा नहीं आया है, डिस्प्यूट में पड़ा है। तो अभी मैं उसको चोर नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा। और ये जो आरती का आप बता रहे हैं सर, वो शरद सर ने परफेक्ट बोला है, और वो कुमार जी है शायद, उन्होंने जो बैलेंस शीट का बताया वो भी परफेक्ट है। सब केमिकल सेक्टर में ऐसा ही होता है। मैं, मेरा भी प्रॉफिट है वो इन्फ्लेट करके एंड में स्टॉक दिखा के इन्वेंट्री दिखा दूंगा, नेक्स्ट ईयर में वो स्टॉक गिर गया तो दिखाऊंगा। अभी आपको बताता हूँ, तिरुमलाई केमिकल, पंजाब केमिकल, तिरुमलाई केमिकल बनाता है वही प्रोडक्ट जो आईजीएल बनाता है। तो तिरुमलाई केमिकल का प्रोडक्ट का भाव 250 रुपया क्यों है, आईजीएल का प्रोडक्ट का भाव 300 रुपया क्यों है? 500 रुपया जाके आया आईजीएल। मतलब सर, यू डू नॉट नो व्हाट ऑपरेटर वांट्स टू डू। आप, मेरे को एक चीज समझ में आता है कि जो आपने खाया वही आपने पचाया, वही आपने कमाया। आप बैलेंस शीट का कुछ भी लाल लिपि रंगत लगाओ, और लास्ट में सब लोग, मैं बोलता हूँ चाइना प्लस वन, अभी फैक्ट फाइंडर सर ने क्या बताया कि चाइना प्लस वन में सब कंपनी का होने वाला नहीं है, सब बैकफायर होएगा। तो मैंने तो पहले ही बता दिया, आप इधर फैक्ट्री लगाओगे, आदमी रखोगे, मजदूर रखोगे, लेकिन आपको प्रोडक्शन आएगा, रॉ मटेरियल मिलेगा तो आप प्रोडक्ट करोगे। आधा प्रोडक्ट तो चाइना बनाता है, आप 75% चाइना पे डिपेंडेंट है। मोदी हार्दिक भाई, हार्दिक भाई, हार्दिक भाई, हाँ हार्दिक भाई, हाँ, we देख will भाई, not मेरे को forget खाली that. व्यू चाहिए। ये आपका जो भी पेमेंट टर्म्स है ना, वो मेरे नहीं को नहीं, सब पेमेंट टर्म्स नहीं ठीक बता रहा है। हूँ सर। मैं खाली, आपको मेरे को खाली इतना बता दीजिए कि फ्यूचर में अगर मेरे को 5 साल के लिए अगर होल्ड करना है, मेरे अभी नहीं नहीं सर, 750 नो से आइडिया। लेके बैठा हूँ। 5 साल के नहीं बाद आई नहीं कैन नहीं नॉट। नहीं, भाई साहब दीपेश भाई, हाँ आप जी, हाँ इतना जी। गरम मत हो हार्दिक भाई पे कि ये मत बताओ, वो मत बताओ, ऐसा बात मत कीजिएगा। और ओके आपको रखना है तो रखो, बेचना है तो बेचो, हमको क्या लेना देना है भाई। हाँ, ओके सामान ओके की आप ओके। अपना जिम्मेदारी सवारी पोजीशन की रखो, होती है दीपेश भाई, 3 सामान साल की में कंपनी जिम्मेदारी उठ गया तो सवारी क्या की करोगे? होती है। अरे ओके ओके, चलो, थैंक यू। वेलकम। कहाँ से आया? ये एमकेडी। गुड इवनिंग शरद सर, मेरा क्वेश्चन था कि अभी स्क्रीन पे देखा जाए तो इंडियन मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में सबसे स्टेबल अगर कोई जगह लग रहा है तो वो गोल्ड लग रहा है। लेकिन सर, ये इंडिया में ये जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है जैसे मन्नापुरम, और ये रोज मतलब सर्किट पे सर्किट डाउन चलती है, और इस पे आप अगर एक व्यू दे सकें तो प्लीज। मणप्पुरम 10-12 रुपया हो जाएगा, और मुथूट फाइनेंस 100 रुपया हो जाएगा। सर क्या मतलब, उनके गोल्ड सब लोन दिए हुए सब नकली निकले क्या गोल्ड? ऐसा मतलब समझा नहीं मैं, क्यों, क्या रीजन है? अरे लोन देना एक धंधा है, बराबर है। जी सर। वो क्या करता है, पैसा बोरो करता है और लोन देता है। ओके, जी सर। और बीच में वो स्प्रेड रखता है। वो जो स्प्रेड होता है उससे 4 गुना तो उसका बेड डेप्स हो जाता है। तो हाउ इज द बिजनेस सर सर प्रॉफिटेबल? सर सर एक मिनट सर, उसमें ऐसा है, गोल्ड लोन बिजनेस इज वन ऑफ द सेफेस्ट बिजनेसेस ऑफ नाउ, बट द अरे प्रॉब्लम इज जो आपने रमेश, बोला ना। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, हाउ इट इज यस सर। सेफ? सर अभी सर अभी 90% गोल्ड पे आउट देता है, तो 10% का मूवमेंट, और इट इज नॉट गोल्ड, इट इज 22 कैरेट, 20 कैरेट ज्वेलरी, उसका रेट ऊपर करके देता। समझ भाई, मैं बोलता हूँ ना, बहुत बैड डेप्स है उधर। सर उसमें वो जो तकलीफ ऑक्शन होता है, वो जो ऑक्शन होता है, किस बात का आई सर ऑक्शन होता है? सर उसमें दूसरा चीज ये है, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग सबका बढ़ गया है, बट द कॉस्ट ऑफ लेंडिंग हैज नॉट इंक्रीज्ड, क्योंकि वो लोग हर साल करते हैं। तो लास्ट 1 साल से कॉस्ट ऑफ बोरोविंग सबका बढ़ गया है 1.5 से 2%।
तो जो मार्जिन स्प्रेड है दैट इज डिक्रीज्ड एज सच। प्लस जो आपने बोला उसमें ये लोग के कंपनीज के अंदर ऐसा एनबीएफसी नहीं में है, नहीं ऐसा नहीं है समर्थ। ये अभी सब बैंकों ने चालू कर दिया है, तो ये मुथूट फाइनेंस और मुथूट और जो भी ऐसा वो कंपनी है, वो लोग को बहुत ही फटका पड़ रहा है। और आप मानोगे नहीं, उनका बेड डेप्स बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। आई नो इट वेरी पर्सनली कि वो लोग बेचने को तैयार नहीं है, बेड डेप्स एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उनका फटा पड़ा हुआ है। वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लैंडिंग तो वो तो चलता रहेगा, पर मेन चीज है उनका एनपीए। एनपीए बहुत ज्यादा है। जो आ, ये आपका जो सवाल था भाई साहब, हेलो, वो किसका यस सर। सवाल, वो किसका सवाल था? सर मेरा सवाल था सर। क्या नाम है आपका? एमकेडी। एमकेडी। तो मेरे हिसाब से 10 रुपया और 100 रुपया हो जाएगा। एंड एनीवे मुथूट फाइनेंस इज अ मैनेज स्टॉक, ओके, वो जी सर। नेचुरल स्टॉक नहीं है। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि ये जो अब जून में फर्स्ट वीक में आरबीआई की जो मीटिंग होगी एफओएमसी की, तो उसमें सर उन्होंने अभी आके 40 बिप्स तो कर दिया, लेकिन आरबीआई की तरफ से वो करने के बाद कंफ्यूजिंग सिग्नल जा रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया सीएनबीसी पे कि बोले कि उन्होंने ऐसे क्लियर बोल दिया कि हम लोग तो एक साथ 7500 आके नहीं कर सकते, मार्केट को शॉक लगेगा। ये लाइन भी उन्होंने बोल दिया। तो अब आने वाली मीटिंग में सर आपका क्या वो लगता है आपको कि 25 या 50 कितना बिप्स और हो सकता है? नहीं नहीं, वो अपने को आइडिया नहीं है यार। उसको जो भी वो करने का है, करेगा। और इंडिया का आरबीआई यूजलेस है। वो आपने हिस्ट्री टीचर को आरबीआई का गवर्नर बनाया, वो यूजलेस है। वेरी ऑनेस्टली आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, वो बढ़ावे घटावे कुछ भी करे। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ कुमार भाई। सर मैंने पहले भी कहा था, जब 10 रुपया लीटर पेट्रोल गवाया था, कम किया था, कि दे हैव गिवन अ बैकडोर एंट्री, इट्स अ प्लॉय बाय गवर्नमेंट टू influence RBI for reduced rate reduction or for not to go for any rate enhancement. I expect 25 bips to be increased, not और 50. कुमार भाई वो 9 रुपया जो घटाया था वो ऑलरेडी क्रूड में अभी बढ़ गया है लास्ट वीक में। सर वो आरबीआई एक ही बात कहेगा, वी आर डेटा डिपेंडेंट। उनका एक रबर स्टैम्प डायलॉग है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, we are data dependent. Let us see what is the next statistical inflation का data जो manipulated है, managed है, वो छोड़ दीजिए। Coming back to Muthoot Finance, I agree with Sharath sir. और if the concerned person still wants to invest, before investing I would only tell him कि 1.5 years back the chairman of Muthoot Finance died in mysterious circumstances. What were those mysterious circumstances? Please have a look into the balance sheet for 1920 and 2021. If you can analyze it, you will never invest your money into Muthoot Finance. That's all. Okay. योगेश भाई, योगेश। हेलो। यस सर। टेल मी। जी सर, आपने 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि आरती इंडस्ट्री और अदानी इंटरनेशनल छोड़ के बाकी सब में शॉर्ट स्क्वायर अप कर लो। तो क्या अभी शॉर्ट साइड में नहीं रुकना चाहिए या फिर अभी थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए? नहीं नहीं, ये ऐसे होता है कि सेटलमेंट का पहला 3-4 दिन होता है ना। ओके। तो इंडिया में बहुत लोग हैं जो लेते हैं, बहुत ज्यादा माल लेते हैं। ओके ओके। आप देखेंगे ना,
एवरी सेटलमेंट के पहले 4-5 दिन बाजार बहुत ही तेज रहता है। राइट, अभी भी ऐसा ही हुआ हाँ, तो उसका मैंने लास्ट 2 दिन में। फायदा उठाया। ओके ओके, या थैंक यू। ओके। गौरांगा। गौरंग साधु, एमडी रेवंकर, प्रशांत, अनम्यूट कीजिए और आस्क। हाय शरद सर। हाय हाय हाय। सर मुझे एक पूछना था, अपना सब्जेक्ट बैलेंस शीट चालू है, तो बैलेंस शीट में अब मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो बैलेंस शीट में जो मेन चीजें देखना चाहिए वो क्या देखना चाहिए? और सेकंड है कि मुझे डिविडेंड पेइंग जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, और चाहिए तो बेस्ट कंपनीज कौन सी है वो बता पाओगे? बहुत डिफिकल्ट। अभी बैलेंस शीट ये कैसा पढ़ने का, वो तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है यार। हाँ, तो ये स्पेस में 2 मिनट में मैं क्या समझाएगा। बट मोटा मोटी ये देखो कि डेटर्स ज्यादा नहीं है, इन्वेंट्री ज्यादा नहीं है, क्रेडिटर्स ज्यादा नहीं है, वैसा कम नहीं पकड़ो। और दूसरा तो आपका कि डिविडेंड, अभी डिविडेंड वो एक कोई भी गवर्नमेंट का उठा के ले लो, वो कोल इंडिया या पीएफसी आरईसी, डिविडेंड अच्छा मिलेगा। अपन वो किसी साल डिविडेंड नहीं देगा तो तकलीफ हो जाएगा। तो वो संभाल के रहना। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा है ना? हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा है ना तो डिविडेंड पेइंग कंपनी? नहीं नहीं, वो तो आपका सब्जेक्ट है, आपने वो पूछा तो मैं बताया। ओके ओके। मैं डिविडेंड पेइंग नहीं लेता हूँ। ओके। और क्या सवाल था भाई? वो दोनों ही थे सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। रेवंत का सब। शरद सर, एक लास्ट क्वेश्चन, बाद में मैं जरा एग्जिट करना चाहूंगा सर। नेक्स्ट 3 महीने के लिए आपका टॉप 5 बेट्स क्या रहेगा सर बुलिश साइड पे? मैं डीएम आपको कर दूंगा। चलो ओके सर, थैंक यू एंड गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गौरंगा, Gauranga, unmute yourself and speak, please. No. Ajinkya, tell me. जी सर। हाँ बोलिए। सर मुझे निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में थोड़ा आपका राय जानना था कि वो अभी कैसा परफॉर्म कर सकता है। अभी आसार तो ऊपर जाने के हैं, अपन अल्टीमेटली नीचे जाएगा, बिकॉज इंडियन स्टॉक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। जैसे इन्फोसिस का पी रेशियो 24 का दिखाता है, और वास्तव में वो 24 का नहीं है, उसमें इंटरेस्ट इनकम आ जाता है, समझा? तो वो निकाल देंगे तो पी रेशियो बहुत ज्यादा है। रिपीट कीजिए सर प्लीज एक बार। अभी समझो इन्फोसिस का पी रेशियो 24 का है, मतलब अर्निंग उतना है, पर वो अर्निंग में आपने इंटरेस्ट इनकम है। ओके। उसके पास में जो पैसा है ना, उसका इंटरेस्ट आता है उसको। ओके ओके। वो जोड़ के वो उतना ईपीएस दिखाता है। अच्छा। वरना में से ईपीएस इतना नहीं है उसका। ओके ओके। तो अभी रिसेंटली मतलब एक अच्छा खासा डिप हुआ था निफ्टी आईटी इंडेक्स में, ऑलमोस्ट 3% के आसपास, तो और रिवर्सल भी हो गया 1-2 दिन में। हाँ, तो मे बी मतलब अभी अभी ऐसे न्यूज़ भी आ रही है कि मतलब आईटी कंपनीज ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है,
तो फ्यूचर के हिसाब से मतलब अभी कैसे स्ट्रैटेजी करें, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो लेने का ही बात हुआ ना। ओके। कि बेचने का बात हुआ। मतलब अभी और नीचे आ सकता है क्या, मतलब प्राइसेस मतलब अभी के? यस यस यस, 100% आएंगे, 100% आएंगे। अच्छा। सर मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, सॉरी। शरद सर, मैं आपने कहा था कि आप बेरिश तो रहते हैं लेकिन आप कुछ फ्यू स्टॉक्स है जो फॉलो करते हैं और आप उसको लेते रहते हैं, और आपने एक बार ट्वीट भी किया था, तो उसमें मुझे सर मैक्सिमम ये रिफ्रैक्टरीज वाले स्टॉक्स दिखे। एनी रीजन आप इसमें पर्टिकुलरली बुलिश हैं? यस, वो धंधा हमेशा चलता रहेगा। रिफ्रैक्टरीज हर चीज में लगता है। जी सर। ओके, दैट इज द लॉजिक, दैट इज द लॉजिक। बोलो सचिन भाई। हेलो। हाँ भाई बोलिए। जी सर, सर हाउ आर यू सर? फाइन सर। मेरा सवाल अबाउट इंडिया से है कि अबाउट इंडिया जो है सर, कैसा सर लगता है? बिकॉज फार्मास्यूटिकल मार्केट में सब ऑलमोस्ट स्टॉक सब डाउन जा रहे हैं। अबाउट भी 24,000 जाके 15,000 जैसे हुआ, अभी कुछ 18,000 17,000 के आसपास अभी सेटल है। तो सर आपका क्या घूमता रहेगा अगले 5 साल तक। अदर फार्मा स्टॉक्स ऐसे देख लो सर, ग्लेनमार्क है, बहुत सारे स्टॉक है। भाई डिविडेंड खाओ ना एबोट का। नहीं नहीं नहीं, डिविडेंड सर अभी आया, बाकी एक साल तक शायद 2-3 क्वार्टर पहले तो डिविडेंड भी नहीं था इतना। नहीं भाविक भाई, इसमें ज्यादा इन्वेस्ट मत करो। बढ़िया, अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू। या सचिन भाई। जय श्री कृष्ण सर जी, थैंक यू वेरी मच सर। जुबिलेंट फूड पे आपका व्यू क्या होगा सर फॉर द लॉन्ग टर्म सर? क्या क्या सर जुबिलेंट फूड पे सर, पिज्जा सर। जुबिलेंट फूड वो चलता है, चलेगा, रखो उसको। थैंक यू सर, थैंक यू।